بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی۔ چلیے اس کا نیکسٹ پارٹ شروع کر لیتے ہیں۔ مزہ تو اب تمہیں آئے گا میری جان، کیونکہ یہ دلہے میاں اب اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہی سوئیں گے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ بریزا نے کسی کی گرم سانسوں کی تپش اپنے کان پر محسوس کر کے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پیچھے دھکیلا۔ تم تو پیچھے ہو کر بولو، مجھے کون سے مزے؟ صحیح مزے تو باہر جو مخلوق ہے اس۔ وہ بولتے بولتے رکی اور ٹھٹک کر بائیں جانب دیکھا، جہاں وہ پوری شان سے براجمان مسکرا کر اسے تکنے میں مصروف تھا۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں ارتضیٰ کی جانب دیکھا اور ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے چیخ مارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ تو تم کہاں سے آئے اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو باہر تھے نا؟ وہ ہونکوں کی طرح بولی۔ ہادی نے دلکشی سے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم یہ حرکتیں کر کے مجھے میرے عزائم سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر سکتی ہو؟ وہ دائیں بائیں دیوار پر اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولتے اس کے گال پر جھکا تھا۔ مریضہ نے آنکھوں کو سختی سے میچتے اس کی جانب دیکھا، جو اس کی جانب دیکھتے شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے تم کمینے انسان، پہلے تو رخصتی کروا لی اور یہاں تمام تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تمہاری ان تیاریوں کو گٹر میں نہ ملایا تو میرا نام بھی بریزہ نہیں۔ ویسے تم آئے کہاں سے ہو؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی چٹک کر بولی۔ ہادی نے نہایت سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یار ساری باتیں ایک جانب، کم از کم کچھ تو دیکھنے کا حق مجھے سونپتی۔ وہ تعصب زدہ لہجے میں بولا۔ بریزا کے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہی تو مزہ ہے، اب تم دیکھو اس روز والے چہرے کو ہی۔ وہ مزے سے بول کر اس سے پہلے آگے کی جانب بڑھتی، ہادی نے ایک جست میں اس کی کلائی تھام کر دیوار سے لگایا تھا۔ بریزا نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم شاید یہ بات فراموش کر رہی ہو بریزا بیگم کہ میں نے اس سادہ سے چہرے والی لڑکی سے ہی محبت کی ہے، اور اتنی محبت کی ہے جس کا اندازہ تمہیں اس بات سے بخوبی ہو جانا چاہیے کہ تمہاری شکل اس لائق تھی بھی نہیں، پھر بھی میں نے محبت تم سے ہی کی ہے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولتے بولتے آخر میں شریر ہوا تھا۔ بریزا نے خشمگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور اسے دور جھٹکتی تنفن کرتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ہادی نے ہنستے ہوئے قدم اس کی جانب بڑھائے، جس کا چہرہ حد درجہ پھولا ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے اس کی پشت پر لب رکھے تھے۔ بریزا کے وجود میں اس کے لمس سے سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ دور ہو کر بیٹھو اور مجھے کچھ کھانے کو دو، مجھے بھوک لگی ہے بہت۔ وہ کسیاہٹ سے بولتے کچھ لبوں کو تر کر گئی۔ ہادی نے بامشکل مسکراتے اس کی جانب دیکھا، ورنہ دل تو شدت سے چاہ رہا تھا کہ اس فٹ بال کا گلا دبا دے۔ کیا کھاؤ گی بولو؟ وہ خود پر ضبط کرتے گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا۔ بریزا نے چہک کر اس کی جانب دیکھا اور سکون سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ ہادی نے نرم گرم نگاہوں سے اس کا بچوں والا یہ انداز دیکھا تھا۔ کیا آرڈر کرنے لگے ہو؟ اچھا تو پھر ایک پیزا منگوا لو، میڈیم منگوا لینا۔ ہاں تمہارے اور میرے لیے بہت ہوگا، اور ونگز بھی منگوانا۔ اور ہاں سچ، پاستا تو مست، تمہیں پتا ہے نا مجھے کس قدر پسند ہے۔ وہ دمکتے چہرے سمیت بولتی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بریزا شاید آج ہماری شادی ہوئی ہے، تمہیں کیا ذرا سی بھی شرم نہیں آ رہی مجھ سے؟ وہ خود کو یہ کہنے سے روک نہ پایا۔ بریزا نے عجیب سے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ ہاں دوستوں میں بھلا کیا شرمانا؟ وہ ہنس کر اس کی بات ہوا میں اڑاتے سر جھٹک گئی۔ ہادی نے مسکینیت سے اس کی جانب دیکھا۔ مگر میں تو تمہارا اب شوہر بھی ہوں، اسے یاد دلانا چاہا۔ پہلے دوست پھر شوہر، اور میرے خیال میں پہلا رشتہ نبھانا بہترین ہے۔ تم اب یہ فضول کی باتوں کو چھوڑو اور جلدی سے وہ سب آرڈر کرو جو میں نے بولا تھا۔ کھلاتے ہوئے تمہاری جان ہمیشہ سے جاتی ہے۔ اپنی اس قدر بے عزتی پر وہ کڑ کر رہ گیا، تبھی سرے سے اس کا بتایا ہوا میل آرڈر کیا تھا۔ اب اس نے سوالیہ نگاہیں بریزا کی جانب اٹھائیں، جو شاید وارڈروب میں گھسی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ہادی کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ پہلے دن کی دلہن ہے، جس قدر سکون سے وہ الماری میں جھکی ہوئی تھی۔ چند ساتوں بعد وہ جو ہی مڑی، اس کے ہاتھ میں ہادی کا بیگ تھا، جسے اس نے لا کر اس کی جانب بڑھایا۔ ہادی نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ سر نعمان کا لیکچر کل ہے نا، اور اسائنمنٹ کی آخری تاریخ بھی کل ہے، رائٹ؟ وہ بیگ اس کی جھولی میں رکھتے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ ہادی نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے تھے۔ یہ لڑکی اب اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اس نے مرے مرے انداز میں اس بات میں سر ہلایا۔ چلو پھر شروع ہو جاؤ۔ اپنی اسائنمنٹ کے ساتھ ساتھ اب تم میری بھی بناؤ گے، کیونکہ آج نکاح کی رسم کے بعد میں گھر جا کر یہ بنانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر تم نے اپنی ضد میں آ کر رخصتی کروا لی، جس میں سراسر تمہارا قصور ہے۔ تو اب اس کوتاہی کا ہرجانہ تمہیں ہی بھگتنا ہے۔ چلو پھر شروع ہو جاؤ۔ وہ تحکم بھرے لہجے میں بولی۔ ہادی نے 2 منٹ کے لیے نہایت سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کی کلائی جکڑتے اپنی سمت کھینچا تو وہ اپنے پہلو میں آن گری۔ ہادی کی نگاہوں میں دیکھتے دھیمے سے اس کی آنکھوں کو چھوا تو وہ سٹپٹا گئی۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے بریزا کا چہرہ جلنے لگا تھا۔ اس کی چلتی زبان کو بھی بری طرح بریک لگ چکی تھی۔ ہادی نے مسکرا کر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا اور اسے خود کے انتہائی قریب کیا تھا۔ ہادی، بریزا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ کیا ہوا بیگم؟ سانس سینے میں ہی اٹک گیا کیا؟ میں نے سوچا جب میں نے ہرجانہ بھرنا ہی ہے تو تم بھی دروازے کو لاک کرنے کا ہرجانہ بھر لو۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتے اس کے گال پر جھکا اور دونوں گالوں پر دھیمے سے اپنا لمس چھوڑا۔ بریزا نے حلق تر کرتے اس کی جانب دیکھا اور سرخ چہرے سمیت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہادی نے ہنس کر اٹھتے اس کی کلائی کو تھاما اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے تھے، جہاں سے وہ ابھی اندر آیا تھا۔
बरीजा ने होंकों की तरह उस दरवाजे को देखा। अगले ही लम्हे ना चाहते हुए भी वो खुलकर हंस दी थी, क्योंकि वो मंजर ही इंतहाई दिलकश लग रहा था। आदि ने उसकी मुस्कुराहट को रगो में उतरता महसूस किया था। उसने बिना किसी देरी के सरल से उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। बरीजा उसकी हरकत पर सटपटाते मुजाहमत करती रह गई, मगर मुकाबिल की गिरफ्त काबिल सताइश थी। इस असाइनमेंट को गोली मारो, पहले इस असाइनमेंट को तो सर कर लूं जिसकी मुझे जल्दी थी, और नेक काम में वैसे भी देरी नहीं करनी चाहिए। उसकी बात पर बरीजा के पूर में लहरें दौड़ गईं। उसकी हालत के पेश नजर वो बुलंदो बांग कहका लगाकर हंस दिया। जो अभी कुछ देर कबल शेरनी बनी फिर रही थी, अब वो भीगी बिल्ली बनी हुई थी। आज तुमने आशिर से खुलकर बात की, मुझे बेहद खुशी हुई। वो दोनों इस वक्त लाउंज में बैठी बातों में मुहफ थीं। हाँ, बस ना जाने किस बात की सजा मैं अपने साथ साथ सबको दे रही थी, मगर अब मुझे अंदाजा हो गया है कि किसी को नाकर्दा गुनाह की सजा देनी ही नहीं चाहिए। वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं शायद लोगों को परखने में गलती कर जाती हूँ। वह शिकस्त खोरदा लहजे में बोलते धीमा सा मुस्कुराई। अफीफा ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा और अतराफ में निगाहें दौड़ाई। वो लोग लूनी से घर लौटे थे कुछ वक्त पहले ही। आफिया किचन में मौजूद थी और आदिल लॉन में चहल करने में मसरूफ थे। सद्दाम ऑफिस किसी जरूरी काम की बदौलत गया था, तभी अफीफा ने इससे बात करने का सोचा था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, किसी को इस गुनाह की सजा नहीं देनी चाहिए जो उसने किया ही ना हो। वो दिल का काफी अच्छा इंसान है, और तुमने महसूस किया है। तुम्हें देखकर उसके चेहरे पर रौनक सी आ जाती है। अफीफा की बर्दाश्ता बात पर प्रीसा ने ठटक कर उसकी जानिब देखा। उसके चेहरे पर फैलती नागवारी अफीफा ने शिद्दत से महसूस की थी, तभी लब भेज गई। तुम्हारी इस बात का मकसद? वो तीखे चतूनों से उसे घूरते हुए बोली। मेरा तो कोई मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे ही तुम्हें बोल रही थी कि तुम दोनों साथ में अच्छे दिखते हो। वो हल्के फुल्के लहजे में बोली। परीसा ने दांत जमाते सर झटका। अफीफा, आज तुमने ये बात कर ली है, आइंदा मत करना। जब तुम मेरे हालात से वाकिफ हो फिर भी ये बात कर रही हो। वो अजियत से बोली। अफीफा ने गहरा सांस भरते उसकी जानिब देखा। देखो परी, इसमें कोई मजाइका तो नहीं है ना कभी तो आगे की जिंदगी के बारे में सोचना ही है। तुम हाल में नहीं लौट पा रही, तुम अभी तक माजी के इन्हीं दर्दनाक पन्नों में बसर कर रही हो जो गलत है। तुम्हें इन औराक को कुरेद कर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल करना चाहिए, मगर तुम उन्हें मजीद दिल के निहा खानों में डाल रही हो। ये सरासर हमाकत है। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। परीसा उसकी बात पे तल्खी से मुस्कुराई थी। मैं कोशिश कर रही हूँ अफीफा, जिंदगी को समझने की, मगर हार जाती हूँ। और मुझे ये बात तस्लीम करने में कोई दिक्कत नहीं कि मेरा चाहना इस हद तक हो चुका है कि उनसे इश्क में मिलने वाली हार से भी मुझे इश्क है। उससे ज्यादा ना मैं कुछ बोल सकती हूँ, ना तुम में कुछ सुनने की हिम्मत है। वो नम लहजे में गोया हुई। अफीफा ने उसे बगौर देखा जो उस दुख में घुलती ही जा रही थी। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करती परी, वो उसके आंसू पोंछते हुए बोली। उसने ठंडी आह भरते चेहरा झुका लिया। उनके ख्याल से फुर्सत मुयसर हो तो अपना ख्याल करूँ ना। मेरी जिंदगी बस उसी शख्स तक महदूद होकर रह गई है। वह तकलीफ से बोलती पीकेपन से मुस्कुरा दी। जब अपने दिल में उस शख्स की खातिर नफरत पैदा कर ही नहीं पा रही, तो फिर एक बार तसल्ली से बैठकर हमारी बात ही सुन लो शहराम भाई के मुतल्लिक। उसने बहुत हिम्मत करते उससे बाबत बात करने का सोचा। अगले ही लम्हे पर ईसा के चेहरे पर सख्ती दर आई। नहीं सुननी मुझे उनके बारे में कोई भी बात, नाम भी नहीं सुनना उनका। तुम बार बार उनका नाम मेरे सामने लेने से गुरेज किया करो, और वो अगर तुम्हारे भाई बन चुके हैं तो फिर मेरे से दोस्ती का कोई जवाब नहीं है। वो सर्द लहजे में बोलती अफीफा को सुनकर गई। उसका लहजा इस कदर पथरीला था कि अफीफा भी एक लम्हे को सटपटा कर रह गई। उसे अपने सामने बैठी लड़की पर पागल होने का गुमान हुआ था, जिसे उसके ख्यालों से भी फुर्सत नहीं थी। 24 घंटे उस शख्स को सोचते रहना जैसे उसकी आदत बन चुकी थी, मगर जो ही कोई उसके सामने उस शख्स की बात बोलता था तो उसका नाम नेहाद नफरत जाग जाती थी। वो प्रीसा को ताज्जुब से देखती रह गई, जो सोफे से हत्थी पे नाखून खुरचने में मसरूफ थी। सद्दाम ने बेसाख्ता अपनी पेशानी मसली और सख्ती से लबों को भेजते बामुश्किल खुद को हशाश बशाश जाहिर करते कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। इस दौरान आफिया और आदिल भी लाउंज में ही आ चुके थे। आदिल ने पहले ही फोन करके वक्त पर सद्दाम को घर बुला लिया था, क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें सद्दाम से कोई जरूरी बात करनी थी। तभी वो आजिजी से उनकी बात मानते घर लौट आया था। अफीफा और परीसा ने भी उन सबको देख खामोशी इख्तियार कर ली थी। अरे, ये चेहरा क्यों इस कदर सुर्ख हो रहा है परी? आफिया परेशानी से उसका चेहरा थामते हुए बोली। उनकी बात पर परीसा ने लबों को तर करते उनकी जानिब देखा। वो मामा, कल शादी पे मेकअप किया था तो शायद उसका साइड इफेक्ट हो गया है, वो उन्हें तसल्ली देने वाले लहजे में बोली। सद्दाम और अफीफा ने बैक वक्त चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा और दोनों ही एक दूसरे से निगाहें फेर गए। तो क्यों करती हो मेकअप? मेरी बेटी तो ऐसे ही इतनी प्यारी है, उसे क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी? मामा, आपकी इतनी प्यारी बेटी के नसीब क्यों नहीं प्यारे हुए? वो फकत सोचकर रह गई। बाबा, आपने जल्दी बुलाया मुझे, खैरियत है सब? सद्दाम उनकी बातों का रुख दूसरी जानिब मोड़ने की खातिर चौंक कर उन्हें मुखातिब कर गया। जवाब में उन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और एक नज़र सबकी जानिब देखा। हाँ, एक निहायत ज़रूरी बात करनी थी। मेरा एक दोस्त है, उसने हमारी परी के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगा है।
लड़का जर्मनी में रहता है, वेल सेटल्ड है। मैं जब काम के सिलसिले में वहाँ गया था तो उससे मिला भी था। बहुत प्यारा बच्चा है। वो मजीद भी कुछ बोल रहे थे मगर प्रीसा के कान उनकी बात पर साएं साएं करने लगे। उसकी समातों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा अंडेल दिया था। मगर बाबा, जर्मनी खासा फासला आ जाएगा हमारे दरमियान। अब यहीं कहीं करीब में। फासला बस रस्तों में आएगा सद्दाम, दिलों में तो नहीं ना। सद्दाम की बात के जवाब में वर्जस्ता बोले और उनकी बात में कोई मजायका भी नहीं था। और वैसे भी लड़कों को पहले देखने में कोई हर्ज ही नहीं था, तभी होले से इस बात में सर हिला गया। इस दौरान किसी ने भी उसकी रजामंदी जानने की कोशिश ही नहीं की थी। बाबा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बट, वो माजरत ख्वाहाना लहजे में बोलती कुछ साथें ठहरी। अफीफा और आफिया के दिल की धड़कन रुक सी गई। उनके चेहरे पर सर्द मोहरी देखकर अफीफा ने गहरी निगाहों से उन सबकी जानिब देखा। जर्मनी तो मैं जरूर जाऊंगी, वो बोलते बोलते मुस्कुराई थी। आदिल और आफिया के चेहरे उसकी बात पे मुस्कुराहट छा गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इस रिश्ते पर रजामंदी जाहिर कर गई है। सदाम और अफीफा को उसके चेहरे के खालीपन से खौफ महसूस हुआ था, मगर किसी से बंद कर नहीं, बल्कि बिल्कुल आज़ाद, अपने दम पर। वो सपाट लबो लहजे में बोली, बाबा, मुझे अब्रॉड जाना है फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। आपकी रजामंदी दरकार है और प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। अब तो आपके मुताबिक वहाँ आपके दोस्त भी हैं तो काम आसान हो जाएगा। वो किस कदर सुकून से ये बात कर रही थी, उन सबको उसके सुकून पर रश्क सा आने लगा। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है परी, सबसे पहले मसला सद्दाम की जानिब से ही आया था। प्रीसा ने आंखों को सख्ती से मेज कर खोला। वो जानती थी कोई बोले ना बोले सद्दाम लाजमी बोलेगा, क्योंकि वो साथ वाली सोसाइटी में कभी उसे अकेले नहीं जाने देता था। ये तो फिर अब्रोड था। भाई, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। वो कमाल जब्त का मुजाहिरा कर गई। सद्दाम ने शर्र बार निगाहों से उसकी जानिब देखा। यकीन? माई फुट परी एंड शट योर माउथ। तुम कहीं नहीं जा रही एंड दैट्स फाइनल। नाउ नो मोर आर्गुमेंट्स। सद्दाम शहादत की उंगली उठाते तंबीही लबो लहजे में बोला। उस दौरान आदिल की निगाहें खामोशी से उसका तवाफ करने में मसरूफ थीं। ठीक कह रहा है सद्दाम, बात यकीनी या बेयकीनी की नहीं है। तुम घर में सबसे छोटी हो परी, तुम्हें निगाहों से दूर करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी जानिब से सख्ती से इनकार है। आफिया ने बेदर्दी से उसकी बात रद्द कर दी थी। आदिल ने बगौर उसकी मुतर्रम आंखों को देखा जिसमें एक दर्द सा उभरा था। उनका दिल फौरी तौर पर पसीजा था। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आदिल की संजीदा आवाज़ पर जहाँ आफिया और सद्दाम ने हैरत से उनकी जानिब देखा, वहीं प्रीसा के चेहरे पर रौनक छा गई थी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो, मगर मेरी भी इसके लिए एक शर्त है परी। वो उसकी बात को सरह से काटते हुए बोले। परीसा की चलती जुबान को वहीं ब्रेक लगी थी। जब भी आपकी वहां से वापसी होगी, फिर आपको बगैर कोई बहाने से उसी शख्स से शादी के लिए रजामंद होना पड़ेगा जिसके साथ मेरी मर्जी होगी। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो फिर मैं भी आपकी बात मानने को तैयार हूँ, मगर अगर आप ऐसा भी नहीं चाहती तो फिर मुझसे कोई उम्मीद मत लगाइएगा। वो अपने लहजे को हत्तुल इम्कान सख्त बनाते हुए बोले। परीसा ने नम निगाहों से उनकी जानिब देखा। बाबा प्लीज ऐसे तो मत कहे ना। मैं वहां से कुछ बनकर लौटूंगी तो शादी में तो नहीं ना। मैं वहां से कुछ बनकर लौटूंगी तो शादी में तो नहीं ना, वो सब सर्व कर दूंगी। भाई आप बोले ना प्लीज। उसने रोते हुए उन्हें कायल करना चाहा, मगर वो तो जैसे जालिम बने बैठे थे। उसकी बात पर कान धरने के बजाय रुख मोड़े बैठे हुए थे। मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो तुम्हारे तन्हा वहां जाने पर भी रजामंद नहीं हूँ। न जाने बाबा ने कैसे इजाजत दे दी। बाबा, आप ऐसे कैसे इजाजत दे सकते हैं? क्या आजकल के हालात से आप वाकिफ नहीं हैं? मैं इतना बड़ा रिस्क अपनी बहन को लेकर कम से कम मोल नहीं ले सकता। इन दोनों की बातों पर प्रीसा ने खामोशी से चेहरा झुका लिया था। मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? आदिल की संजीदा आवाज पर परीसा ने नम पलकों की झालर उठाते उनका चेहरा जांचा जहां नरमी का शाइबा तक नहीं था। मैं तैयार हूँ बाबा। उसके शिकस्त खोरदा लहजे पर अफीफा का दिल बंद हुआ। वो जानती थी कि इस बेकस हौसले से उस काम पर रजामंदी जाहिर की गई थी। परीसा ने वहां से वापस लौटकर उनसे बात करने का सोचा था, क्योंकि अभी गुस्से में होने के बदौलत वो किसी की भी नहीं सुन रहे थे। वो जानती थी कि आदिल कभी भी उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, तभी अपना दिल मजबूर किए इस फैसले पर हामी भर ली थी। आदिल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और एक नज़र सबके तासुरात का जायजा लिया तो सब शिकवा खुना निगाहों से उनकी जानिब देख रहे थे। आप अच्छा नहीं कर रहे आदिल। मैं कैसे उसके बगैर रहूंगी? मैं तो इस फिक्र में ही घुल घुल कर मर जाऊंगी। परी, आप अपने कमरे में जाएं और अपनी पैकिंग करना शुरू कर दें। मैं इमरजेंसी टिकट बुक करवाकर पहली फ्लाइट से आपको जर्मनी रवाना करूंगा। वैसे भी पढ़ाई तो मुकम्मल हो ही गई है, डिग्री का हिसाब मैं देख लूंगा। आफिया के भराए लहजों को नजरअंदाज करते उन्होंने परीसा को हुक्म सादिर किया था। परीसा ने उनकी बात पे अपनी हिचकों का गला दबाते तेज कदमों से कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए थे। मोरे मोरे, जर बीबी जो सेहन में बैठी सब्जी काटने में मुहफ्ती लाला रुख के चिल्लाने पर उनके हाथ से छुरी छूटते टोकरी में जा गिरी। उन्होंने सरह से बाएं जानिब देखा, जहां से लाला रुख हाँफती हुई उन्हीं की जानिब आ रही थी। क्या हो गया है? चिल्ला क्यों रही हो? उनकी सख्त आवाज पर उसके हलक तर्क करते उसकी जानिब देखा और कांपते हाथों से दाएं जानिब इशारा किया। वो उसका फीका पड़ता चेहरा देख तेजी से उस जानिब भागी थी, मगर कमरे में कदम रखते उनकी आंखें तहय्युर के मारे फैली थीं, क्योंकि बेड पर झुकी
मुसलसल उबकाइयाँ करने में मसरूफ थी। वो अपना सीना पीटती पश्मीने की जानिब बढ़ी जिसकी रंगत जर्द पड़ रही थी। ये क्या किया तूने? हाय अल्लाह, हम क्या करें? लाला रुक, जल्दी से जा और दाई को बुला कर ला। नुफेल से बोल दे जा जल्दी। वो वहीं बैठे बैठे चिल्लाई क्योंकि उसकी हालत बिगड़ती ही चली जा रही थी और अगर शहराम के बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर वो उसे क्या मुंह दिखाती। वो इतने एतमाद से उसे यहाँ उनके भरोसे पर छोड़कर गया था। इससे पहले कि रुक नुफैल के कमरे का दरवाजा खटखटाती, सामने से नुफैल ने हैरत से उसकी जानिब देखा। क्या हुआ है? ये चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? वो हैरत भरे लहजे में गोया हुआ। लाला रुक ने जल्दी से सारी बात उसके गोश गुजार कर दी। उसकी बात पे परखा भागने वाले अंदाज में उस कमरे की जानिब बढ़ी जहाँ पश्मीने ठहरी हुई थी, जबकि वो तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा था। दाई को बुलाने तो वो पहले भी जाने वाला था क्योंकि उसे परखा से मुतल्लिक तमाम शकूक व शुबहात को खुद से दूर करना था। तकरीबन 10 मिनट बाद ही उसकी वापसी हुई तो उसके साथ एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। नौफेल के शहराम को इतला देने के कुछ देर बाद ही वो भी पथरीले तासरात चेहरे पर सजाए तनफन करता अफरीदी हवेली चला आया। क्या है क्या है वो औरत? सबको मारकर उसे सुकून नहीं मुयसर आया जो अब इस निशानी को भी खत्म करना चाहती है। वो बोला नहीं धाड़ा था और उसकी एक धाड़ हवेली की दरो दीवार को हिलाकर रख गई थी। नौफेल ने उसका शाना थपथपाते बेसाख्ता उसे सहारा दिया था। दाई अंदर मौजूद उसका इलाज करने में मसरूफ थी। तुम पहले मुझे कॉल करते, हम करीबी अस्पताल ले जाते। शहराम की बात पर नफेल ने पेशानी मसलते चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। न जाने क्या किया है उसने। अगर देरी करते तो कुछ भी हो सकता था, इसलिए जल्दबाजी में जो हुआ वो कर दिया। वो तफसील से बताते निगाहों का जाविया बदल गया। शहराम के चेहरे से इज़्तिराब साफ झलक रहा था। वो मुसलसल पेशानी मसलते सहन में चक्कर काट रहा था। कुछ ही सातों बाद जर बीबी इन्हें दाई के साथ आती दिखाई दी थी। वो तेजी से उनकी जानिब बढ़ा। सब ठीक है शहराम। उसने पूरी कोशिश की है इस नन्ही जान को खत्म करने की, मगर वक्ती इलाज की बदौलत बचत हो गई। दवाइयाँ ज्यादा मिकदार में खा ली थी उसने। तुम परेशान ना हो, हमारे होते तुम्हारी औलाद सही सलामत मिलेगी। वो मुतानत से उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। शहराम उनकी बात पर इस बात में सर हिलाते लंबे लंबे ढक भरते उसके कमरे की जानिब बढ़ गया। अपनी जुबान में उसे समझाना बेहद लाजिम था, वरना अगली बार वो मजीद ऐसा कोई गुनाह करती। उसके चेहरे पर पथरीलापन रकम था। उसके मंजर से हटते ही नफेल ने परखा का इलाज कराने का उन्हें इशारा किया तो वो परखा और दाई को लेते उनके कमरे की जानिब बढ़ गई। परखा ने सहमी हुई निगाहों से उनकी जानिब देखा। उसने पलकें झपकते उसे पुरसुकून रहने का इशारा किया तो वो हलक तर करते मरियल कदमों से कमरे में दाखिल हो गई। कुछ देर बाद ही कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज पर उसने अपनी आंखें भी मौंदी थी। या अल्लाह, सब तेरे हवाले। ना हमने परखा को बनाते हुए इतराज उठाया था, ना हम अब उठाएगा। हम शुरू से ही तेरी रजा में राजी है। हो सकता है मेरे इस अमल से ना जाने कौन से काम संवर जाएं। उसने दिल ही दिल में शिद्दत से दुआ की थी। शहराम जो ही कमरे में दाखिल हुआ वो बेड ग्राउंड से कुछ टिकाए शरर बार निगाहों से लाला रुख को घूरने में मसरूफ थी। शहराम की पेशानी पर शिकने नमूदार हुई। लाला रुख की निगाह जो ही शहराम की जानिब उठी वो तेजी से उसकी जानिब आई। लाला, वो हमने बस ये कहवा बनाया था दाई माँ के कहने पर, मगर ये पी नहीं रही। अगर ये नहीं पीती तो वो दवाई कहीं ना कहीं अपना असर दिखा सकती है। वो उंगलियां चटकाते हुए बोली। शहराम को सामने देख पश्मीने का चेहरा लट्ठे के मानी सफेद पड़ गया क्योंकि उसकी काटदार निगाहें उसके वजूद पर गड़ी थीं। आप बाहर जाओ बेटा। वो हनूज पश्मीने को तकते हुए सर्द लहजे में बोला। जितने गुनाह तुम सरजद कर चुकी हो ना पश्मीने बीबी, इसी पर गुजारा करो। अपनी मौत को अपने लिए बदतर मत बनाओ क्योंकि मैं लिहाज नहीं करूंगा। परखा को बेनाम मौत देकर मेरी मोरे को मारकर सुकून नहीं आया जो इसको भी मारने चली हो जो इस दुनिया में आया ही नहीं। ये मेरी पहली और आखिरी तंबीह समझना। तुम अगर इस बच्चे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा, एक खराश भी आई, तो जैसे उस आदमी को मैदान के बीचों बीच लटका कर मौत दी है, उससे भी बदतर मौत तुम्हारे नसीब में करूंगा। तड़पती रह जाओगी तुम। तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर बना दूंगा इस बच्चे को अगर कोई नुकसान पहुंचा तो। वो उसका चेहरा बेदर्दी से दूर झटकते तनफुर भरे लहजे में गुर्राया। उसकी लहू रंग निगाहें देख मीना के दिल में खौफजा भर गया। तभी चेहरा झुका गई। जल्दी से ये पियो, ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस बच्चे के बाद तुम्हारी औकात एक फूटी कोड़ी जैसी है और ये बात मैं तुम पर वाजे भी कर दूंगा। वो उसके हाथों की उंगलियों को मरोड़ते जहरखंद लहजे में बोला। वो तकलीफ की शिद्दत से कर्रा उठी। शहराम ने उसे दूर झटका तो वो जल्दी जल्दी में वो कहवा खुद में अंडेलने लगी। दरअसल वो शहराम की धमकियों से डर चुकी थी। शहराम ने नफरत से सर झटकते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। उसके जाते ही वो अपनी कोताहियों को याद करते शिद्दतों से रो दी थी। वैसे आपने इसका इलाज क्यों करवाया? अभी तो दुल्हन ब्याह कर आई है, हफ्ता 2 हफ्ता हुए हैं। वो मशकूक निगाहों से जर बीबी की जानिब देखते हुए बोली। परखा ने अपनी बेबसी पर सख्ती से आंखें मेची थीं। आपका काम जितना है उतना ही करें। फजूल की बातों के लिए आपको हम यहाँ नहीं बुलाते। जितनी हदें कायम हैं उसी में रहें। इससे पहले कि वो कुछ बोलती दरवाजे पर एस्तादा नोफेल सरस से दरवाजा खोलते अंदर आया और गुस्से के उबाल को अंदर दबाते तुंद लहजे में धाड़ा। नोफेल, हम बात कर रहे हैं ना? जर बीबी ने उसे समझाना चाहा मगर वो उनकी बात को सिरे से नजरअंदाज करते परखा की जानिब बढ़ा। मोरे माजरत, मगर आपने अगर इन लोगों को आज अद में रखा होता तो ये कभी भी बेवजह मुंह ना खोलते। वो खोलते लहजे में बोला तो वो गहरा सांस भर गई।
हमने इलाज कर दिया है बड़ी बेगम साहिबा बहू का, बस कुछ उल्टा सीधा खाने की बदौलत ऐसा हो गया है। मजीद कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। परखा जो नफेल के शाने पर सर रखे खामोश आंसू बहा रही थी, उसकी बात पर उसने बेयकीनी की कैफियत में उनकी जानिब देखा और भीगी निगाहों समेत मुस्कुरा दी थी। नफेल ने नरमी से उसके आंसू साफ करते उसे हंसने से टोका तो वो चेहरा झुका गई। उनके जाते ही वो एक बार फिर खुलकर मुस्कुरा दी थी। बोल रहा था ना, परेशानी की कोई बात नहीं है, हमारे पे यकीन ही नहीं है। आप पे यकीन है तभी तो ये हौसला पड़ा है हमारे में, वरना हम तो कब से इसी बदनामी के खौफ से मर जाते। वो उसकी बात के जवाब में रोते हुए बोली तो नफेल ने नरमी से उसे अपने हिसार में लिया। ऐसे ही हम तुम्हें मरने देते, अभी तो तुम्हें बहुत जीना है और हमारे संग जीना है। वो उसकी सुर्ख मतोरम आंखों को छूते मोहब्बत से गुंदे लहजे में बोलते उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। फरखा ने आसूदगी से मुस्कुराते उसके सीने पर सर रखा तो वो मजीद शिद्दत से खुद में भेज गया था। वो कमरे का दरवाजा होले से वहां करते जूं ही कमरे में दाखिल हुई, शीजा बेड क्राउन से पुष्टि टिकाए सुकून से फोन पर किसी से बात करने में मसरूफ थी। उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट देख वो बेतहाशा ठटकी थी, मगर अगले ही लम्हे वो अपना वहम समझते सर झटक गई। शीजा ने नाइमा को अपने कमरे में आते देख सरस से अपना फोन रखा और चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। खाला, आप इस वक्त कमरे में? खैरियत? वो बालों को जूड़े में मुकैयद करते हल्के फुल्के लहजे में बोली। जवाबन उन्होंने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखते इस बात में सर हिलाया। हाँ, सब खैरियत ही है, बस तुम्हारी पसंद का कटलेट बनाया था तो सोचा तुम्हें कमरे में दे दूं। वो मुस्कुराकर बोलती उसके नज़दीक की जगह संभाल गई। वाह, थैंक यू खाला, वैसे भी बहुत भूख लग रही थी। वो मुस्कुराकर बोलती खाने में मसरूफ हो गई। नाइमा ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। किससे बात कर रही थी फोन पर? वो मुस्कुराते लहजे में बोली। शीजा का मुंह में जाता चम्मच वहीं रुका था। खाला, क्लास फेलो है मेरी, बस वैसे ही अपनी शादी की बातें कर रही थी और मैं उसकी सुन रही थी। उसने बामुश्किल अपने लहजे को हशाश पर शाश बनाते झूठ का सहारा लिया था, जिसे नाइमा ने फौरन सच मान लिया क्योंकि उसके चेहरे पर झूठ का शाइबा तक नहीं था। उन्होंने उससे वो बात करने का सोचा जो वो करने आई थी, तभी गला खंगारते सीधी हो बैठी। अच्छा, मैं तुमसे एक बात करने आई थी, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। उन्होंने बिलाखिर बात की तमहीद बांधी। उसने फुर्सत से खाते इस बात में सर हिलाते गोया उन्हें बोलने का इशारा किया था। तुम जानती हो ना, मैंने हमेशा से तुम्हें इर्तिजा के लिए सोचा है, यहाँ तक कि आप ही से भी बात कर ली हुई है। उन्हें इस मामले में कोई एतराज़ नहीं है। मैं बस तुमसे इस मुतल्लिक राय जानने आई थी कि तुम इस बाबत क्या कहती हो। वो तफसील से बताते हुए बोली। खाला, आप किस मुतल्लिक बात कर रही हैं? वो उनकी बातें खूब समझ गई थी, मगर मासूम बनने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। मैं तुम्हें अपने इर्तिजा की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद भी मेरा कुछ यही था कि तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो। उन्होंने धीमे लहजे में जवाब दिया। और मैंने तो उस दिन भी ये बात आप पर वाज़ेह कर दी थी कि मैंने इर्तिजा को अपने दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं जाना। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ना ही मैं उससे कभी कुछ ना ही मैंने उसे कुछ वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। ना ही मैंने उसे कभी कुछ समझा है। मैं तो फैमिली में शादी करने के हक में ही नहीं हूँ। इसीलिए आप उन सब बेलगाम सोचों पर अभी रोक डाल दें, वरना जहन बहुत कुछ बुन लेता है और फिर जब वो चीज़ें मुकम्मल नहीं होती तो बहुत ठेस पहुँचती है। वो कंधे उचकाती बेनियाजी से गोया हुई। नाइमा ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। मैंने आप ही से इस मुतल्लिक बात कर ली हुई है शीजा। वो अपनी बात पर जोर देते हुए सख्ती से बोली। वो जो बाल दोबारा थाम चुकी थी, ठटक कर उनकी जानिब देखा। खाला, शादी किसकी होनी है, मेरी या मामा की? अजीब बात है, उनकी बेटी से करनी चाहिए। आपको तो माँ से रिश्ता तय करके बैठी हुई हैं, जैसे बेटी ने नहीं माँ ने जिंदगी गुजारनी है। वो सर झटक कर अजीब लहजे में बोली। इसमें मुज़ायका क्या है शीजा? हम सबको तुम जानती हो और इर्तिजा को तुम जानती हो, फिर क्या मसला है? वो सख्ती से गोया हुई। यही तो मसला है कि मैं आप सबको जानती हूँ। मैं वहां जाना चाहती हूँ जहाँ मैं किसी को जानती ना हूँ, क्योंकि गैरों से ज्यादा अपने ही आपकी ज़ात पर वार करते हैं। अपनों पर यकीन करना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। मैं इन सब झंझट में वैसे भी अभी नहीं पड़ना चाहती। आप मेरी जानिब से इनकार ही समझे प्लीज़। वो उनके दोनों हाथों को थामते आज़वी से गोया हुई। उन्होंने शिकवा कुना निगाहों से उसकी जानिब देखा था। मुझे इतना शौक था अपने बेटे का रिश्ता करके मैं इतनी शानदार मंगनी करूं उसकी, और उसकी दुल्हन को लोग देखते रह जाएं। मेरी इकलौती और जान से प्यारी औलाद है वो। मेरी बहुत सी ख्वाहिशात उससे वाबस्ता हैं। वो खोए खोए अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। शीजा ने मुस्कुराकर उनके नज़दीकी जगह संभाली थी। तो खाला, आपको कौन इनकार कर रहा है? आप ना करें ये सब। दुनिया में लड़कियां ख़त्म तो नहीं हो गई। मैं ना सही तो लाखों करोड़ों लड़कियां इर्तिजा की किस्मत में हो सकती हैं। मगर इस पर भी ध्यान दीजिएगा खाला, क्योंकि उन लाखों करोड़ों लड़कियों में वो हमेशा अनाब अहमद को ही चुनेगा। वो निहायत गहरे लहजे में बोलती उन्हें ठुठका गई। उन्होंने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जिसने ना जाने अभी किसका नाम लिया था और अब अलमारी में घुसी न जाने क्या तलाश कर रही थी। वो सरस से उसकी जानिब बढ़ी। किसका नाम लिया तुमने अभी? क्या इर्तिजा किसी को पसंद करता है? वो तहय्युर के आलम में आंखें फैलाई ना समझी से बोली। पसंद बहुत छोटा लफ्ज़ है इन एहसासात को बयान करने के लिए। वो जुनूनी है उस लड़की के लिए, और इस जुनून में वो कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि उसकी जुनूनियत को उससे मिलाना आप पे फ़र्ज़ है। वो जताने वाले लहजे में बोलती उन्हें बहुत कुछ बावर करवा गई थी। कौन है वो? उनका लहजा सपाट था। शीजा ने नरमी से तमाम मालूमात उनके गोश गुजार कर दी।
اس کا فیملی بیک گراؤنڈ۔ اس کی بات پر شیزا کے چہرے پر ایک دم تاریک سا سایہ لہرایا۔ کیا ہو گیا ہے خالہ؟ آپ بھی ان سب باتوں کو دیکھتی ہیں؟ بس اس بات پر غور کیجئے کہ وہ لڑکی آپ کے بیٹے کے لیے بہت قیمتی ہے۔ ویسے اس کا سٹیٹس مڈل کلاس ہی ہے، مگر لڑکی نہایت حسین ہے۔ اس کے سامنے تو یقیناً میں بھی آپ کو پھیکی لگوں گی۔ وہ انہیں سمجھانے والے انداز میں بولی۔ وہ گہرا سانس بھرتے چہرہ جھکا گئیں۔ کیا خیال ہے پھر خالہ؟ وہ شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی تو نائمہ کھل کر ہنس دی تھی۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ میرے شہزادے کو وہ پسند ہے تو پھر اس کی قسمت میں وہی شہزادی ہوگی جو اس کے دل میں نہایت اہم مقام رکھتی ہے۔ میں کون ہوتی ہوں محبت کرنے والوں کو الگ کرنے والی؟ بس اب جتنی جلدی ہو سکے اس کے گھر رشتہ لے جاؤں گی اور اسے ارتضیٰ کی دلہن بنا کر گھر لے آؤں گی۔ اب مزید دیری نہیں کر سکتی میں۔ مجھے اس گھر میں بھی اب رونق چاہیے۔ اس کے شرارتی لہجے پر کھل کر ہنستے ان کے ساتھ لگی تھی۔ نائمہ نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی تھی۔ اس نے بھی جواب میں ان کا گال چوم لیا تھا۔ اچھا، اس متعلق ارتضیٰ کو کچھ بھی معلوم نہ ہو؟ خالہ اس بات کا خیال کیجیے گا اور نیچے جا کر آپ نے ارتضیٰ سے میرے سے ہی شادی کے متعلق بات کرنی ہے اور میں اس پر رضامندی ظاہر کر دوں گی۔ پھر حالت دیکھیے گا اپنی جنونی بیٹے کی۔ ایک ایک بات کا اعتراف وہ آپ کے سامنے خود کرے گا۔ میری بات لکھ کر رکھیں۔ وہ ہنستے ہوئے مزے سے بولی تھی اور وہ اس کی بات پر تھمس اپ کا اشارہ کرتے نیچے کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بھیگی پلکیں اٹھاتے کمرے پر طائرانہ نگاہ ڈالی اور ایک بار پھر ضبط کا شیرازہ بکھرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انجان شخص کی بدولت آپ کو خود کو ہی بلانا پڑ جاتا ہے؟ اس کے ساتھ تو ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھوں کو رگڑتے وارڈروب کھولی اور بیگ گھسیٹ کر بیڈ پر رکھتی بری طرح کپڑے اس میں ڈالنے لگی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپا رہے تھے۔ مان سیاہ چیز پر نگاہ پڑتے اس کی آنکھیں جھلملائی تھیں۔ اس نے نرمی سے اس چادر کو تھامتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا جب خود کو بھی اتنی ہی تکلیف ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ عفیفہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ پریسا نے گہرا سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کچھ غلط کر رہی ہوں عفیفہ؟ تم مجھے روک سکتی ہو؟ اس کے جواب پر وہ لاجواب ہو گئی۔ پریسا نے اس کی مسلسل خاموشی سے اکتاتے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی سی جاگ رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں روکنا چاہتی پری، کیونکہ میں تمہاری اذیت کا سامان نہیں بننا چاہتی، مگر تم خود سے ٹھہر جاؤ نا، مت جاؤ، کیا ملے گا تمہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے التجائیہ لب و لہجے میں بولی۔ تم نہ چاہتے ہوئے بھی میری اذیت کا سامان بن رہی ہو عفیفہ، پلیز اب مت رونا۔ میں جانتی ہوں خود کو مضبوط ظاہر کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ ضبط ٹوٹ گیا تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ لاؤ تمہاری پیکنگ کروا دوں میں۔ وہ اپنے لہجے کو بمشکل حشاش بشاش بناتے ہوئے بولی۔ پریسا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے پیچھے کیا۔ اب ہر کام مجھے خود سے کرنا ہے۔ سوچ رہی ہوں جتنے دن یہاں ہوں عادت ڈال لوں۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ میرے لیے دعا کرنا عفیفہ، جس مقصد کے لیے وہاں جا رہی ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ بہت اذیت ہے اس میں، بہت زیادہ۔ میری اذیت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ دلاسے سب دیتے ہیں، کوئی ایک بار میری تکلیف کو محسوس کر کے دیکھے اس کی جان نکل جائے گی۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ عفیفہ کے شانے پر ہاتھ جماتے شکوہ کناں لہجے میں عفیفہ نے نرمی سے اس کے بال سہلائے تھے اور نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ یار عفیفہ، کہاں ہو تم؟ حد ہے پری، میری بیوی کو دور کر کے رکھ دیا تم نے۔ وہ عفیفہ کے شانے پر ہاتھ جماتے شکوہ کناں لہجے میں بولا۔ پریسا نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسی لیے تو دور جا رہی ہوں تاکہ آپ کی بیوی کی توجہ مجھ سے ہٹ کر مکمل طور پر آپ کی جانب ہو جائے۔ تمہارے دور جانے سے کیا ہوگا؟ کیا ملے گا تمہیں؟ صدام نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تنہائی بھائی، ان وحشتوں سے، ان تنہائیوں سے، اذیتوں سے۔ اور ابھی مجھے یہی چاہیے، وہ ویران لہجے میں بولی تھی۔ تم چلی جاؤ گی، پھر یہ جو تمہاری دوست ہے یہ میرا دماغ کھائے گی تمہارے حصے کا بھی۔ میرے تو کان پک جائیں گے۔ وہ شاید انہیں ہنسانا چاہ رہا تھا۔ اسی لیے تو جا رہی ہوں کہ سب میری ذات کو فراموش کر دیں، آپ مجھے بھول کر اپنی بیوی پر توجہ دیں۔ عفیفہ میری پریشانی چھوڑ کر آپ کی جانب متوجہ ہو، اس کی توجہ کا مرکز فقط آپ کی ذات ہو۔ ماما بابا میری ٹینشن نہ لیں، مجھے سب کچھ دیر کے لیے فراموش کر دیں۔ ویسے بھی میں یہاں سب کی پریشانی بڑھانے کے لیے ہی تو ہوں۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ مت کرو ایسا پری، ہم میں سے کسی کے لیے بھی تمہاری ذات پریشانی کا باعث نہیں۔ میرے لیے ہے بھائی، میرے لیے ہے۔ میں اپنے لیے خود ہی بڑی پریشانی اور اذیت ہوں۔ اپنے لیے میں خود کو مارنے کا ارادہ کر رہی ہوں۔ یہ سوچیں، وحشتیں مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہیں، مجھے نگل رہی ہیں۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اذیت سے بولی۔ پری، ہمیں اتنا بڑا زخم مت دے کر جاؤ۔ وہ اس کے آنسو پہنچتے ہوئے منت کرنے والے انداز میں بولا۔ بس آخری بار بھائی، بس آخری بار، کیونکہ اس کے بعد جب بھی آپ پریسا سے ملیں گے وہ اس سے بہت مختلف ہوگی۔ وہ نرمی سے مسکرائی تھی اور اس وقت اس کی مسکراہٹ ان دونوں کو نہایت عجیب محسوس ہوئی تھی۔
بھائی مجھے سونا ہے، آپ ماما سے کہیے گا کہ پریسا نے آپ کی آغوش میں سونا ہے، اگر ان میں حوصلہ ہو تو پلیز میرے کمرے میں آ جائیں، اس کے بعد کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ وہ بیگ کو ایک جانب رکھتی ویران لہجے میں بولی۔ عفیفہ نے اسے کوئی اشارہ کیا تو وہ اس کی پیشانی چومتے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا، پریسا کی پکار پر وہیں تھما اور چونک کر اس کی جانب بڑھا۔ پریسا نے وارڈروب کھولتے اس میں سے وہی سیاہ چادر نکالی اور اس کی جانب بڑھائی تھی۔ صدام نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ دنوں میں ایبٹ آباد جانے والے ہیں نا آپ؟ اس کی بات پہ جھٹکے سے چہرہ اٹھاتے ان دونوں نے بے یقینی کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا جو اب نرمی سے اس چادر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ دونوں سمجھنے سے قاصر تھے کہ اسے اس بابت علم کیسے ہوا۔ معذرت، مگر آپ کسی سے بات کر رہے تھے فون پر تو میں نے آپ کی بات سن لی، وہ وضاحت دینے والے انداز میں بولی تو وہ ہولے سے سر ہلاتے چہرہ جھکا گیا۔ یہ چادر انہیں واپس لوٹا دیجیے گا اور ہو سکے تو مجھ پر ایک احسان کر دیجیے گا اور یہ بات ان تک پہنچا دیجیے گا کہ اس عنایت کا، اس خوبصورت یاد کا بہت شکریہ، مگر اب اس عنایت کے ساتھ میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ چھوٹی سی عنایت میرے حلق کا پھندہ بن چکی ہے۔ ان سے یہ بھی بولیے گا کہ پریسا کبھی ان سے نفرت نہیں کر سکتی، شاید کبھی بھی نہیں۔ بہت کوشش کی ہے مگر ناکام ٹھہری ہوں میں اسی امتحان میں۔ ہاں مگر محبت بھی ان آنے والے سالوں میں بھول جاؤں گی۔ اب نہ محبت ہوگی نہ ہی نفرت۔ پریسا آفندی اس جنگ میں اپنی ہار بخوشی تسلیم کرتی ہے، انہیں ان کی جیت مبارک ہو۔ وہ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر چادر رکھتے زرد چہرے سمیت پھیکے لہجے میں بولتی۔ مریل قدموں سے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ عفیفہ کو اس کی حالت دیکھ کسی مردے کو گما ہوا تھا جو کھینچ کھینچ کر سانس خود میں اتارتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ صدام نے شہرام کی چادر کو مٹھی میں بھینچا تھا۔ اسے یہ سن کر اس قدر تکلیف ہوئی تھی تو پھر وہ جو سہ رہی تھی اس کا کیا قصور؟ ان دونوں کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی عافیہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جو ہی بیڈ کے نزدیک پہنچی ان کی حالت دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ روئی ہے۔ اپنے بالوں میں ان کی انگلیوں کا لمس محسوس کر پریسا نے نرمی سے سر ان کی گود میں رکھتے آنکھیں موند لیں۔ پری، ماما مجھے سونا ہے، ابھی صرف سونا ہے اور بہت سارا سونا ہے، سکون بھری نیند لینی ہے، رونے کا جی نہیں چاہ رہا۔ وہ ان کی بھرائی پکار پر آنکھوں کو سختی سے میچتے ہوئے خالی خالی لہجے میں بولی۔ عافیہ اس کے بعد کچھ نہیں بولی تھی، بس اس کے سر کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتی رہیں۔ پریسا نے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے چہرے پر رکھا۔ عافیہ کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتے اس کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ کیسی بے بسی تھی کہ سب جانتے بوجھتے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک کسک سی ان کے دلوں میں تھی۔ وہ جو ہی زینے اترتے نیچے لاؤنج میں آئی، ارتضیٰ اور نواز صوفوں پر براجمان ویڈیو گیمز کھیلنے میں بری طرح غرق تھے۔ مسلسل ان کے چلانے اور کہکا لگانے کی آوازیں پورے لاؤنج میں گردش کر رہی تھیں۔ وہ ان دونوں کے بچپنے پر تعصب سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی اور ان کے ہاتھ سے ریموٹ چھینتے ایک جھٹکے میں وہ بند کی تھی۔ ارے یہ کیا کیا بیگم، اتنے اچھے مراحل پر گیم داخل ہو چکی تھی۔ نواز اچھا خاصا چڑ کر بولے۔ ماما دس از ناٹ فیئر، وہ احتجاجاً چلایا۔ مجھے ایک نہایت اہم بات کرنی ہے آپ دونوں سے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ آپ اتنی سنجیدہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولتے بھویں اچکا گئے۔ میں نے رشتہ کر دیا ہے ارتضیٰ کا، وہ بغیر کوئی تمہید باندھے بولی۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ میرا رشتہ کر دیا؟ میرا؟ وہ انگلی کی مدد سے خود کی جانب اشارہ کرتے تمسخرانہ لہجے میں بولا۔ یہ میرا تم ایسے کر رہے ہو جیسے کسی پرائم منسٹر کی اولاد ہو۔ آئی ایم سوری ٹو سے ماما، مگر مجھے آپ کی پسند بالکل نہیں پسند۔ وہ پرسکون سا صوفے سے پشت ٹکائے بے نیازی سے گویا ہوا۔ تم نے ابھی میری پسند کو دیکھا کہاں ہے؟ وہ اترا کر بولی۔ مجھے دیکھنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ وہ شانے بے نیازی سے بولتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے کس کو پسند کیا ہے آپ نے میرے لیے؟ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا۔ شاید آپ بھول چکی ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر شیزا کی جانب اشارہ کیا۔ ان کے اشارے پر وہ زبردست قسم کا قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ شاید آپ بھول چکی ہیں کہ وہ بہت پہلے سے اس رشتے سے انکار کر چکی ہے، تو ایک بار پھر سے جلے مردے اکھاڑنے کا فائدہ؟ وہ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سجائے گویا ہوا۔ شیزا پلیز تم ہی ان کی سماعتوں سے یہ بات نکال دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ عجیب بات ہے، ویسے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ شادی نہیں ہو گئی، دوسری کلاس کے بچے کو مار مار کر سبق یاد کروانا ہو گیا۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتے تنک کر گویا ہوا۔ نائمہ نے نرمی سے اس کی کلائی تھام کر اپنے مقابل بٹھایا تھا۔ ارتضیٰ کی مسکراتی نگاہیں کسی کے چہرے کا طواف کرنے میں مصروف تھیں۔ اس کا چہرہ کافی حد تک سپاٹ تھا۔ اندازہ لگانا بے حد مشکل تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، مگر پھر بھی کسی حد تک وہ اس بات سے آشنا تھا کہ شیزا اس رشتے پر کبھی بھی رضامند نہیں ہوگی۔ راضی ہو نا اس رشتے پہ تم؟ نائمہ اس کے بال سنوارتی محبت بھرے لہجے میں بولی، ساتھ ہی اس کی پیشانی پر ممتا بھرا بوسہ دیا۔ اس کا سر اس بات میں ہلتا دیکھ اگلے ہی لمحے ارتضیٰ کے لبوں سے جیسے کسی نے مسکراہٹ نوچ لی تھی۔ اس کے مسکراتے لب فوراً سے پہلے سمٹ گئے۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں اس کے چہرے کا جائزہ لیا جہاں حیا آلود مسکراہٹ کا راج تھا۔ وہ اس کے اچانک پینترا بدل جانے پر تل ملا کر رہ گیا۔ نائمہ کی مسکراتی نگاہیں خود پر محسوس کر اس کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔
मैं तुमसे शादी कतई नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। और आप मामा माफ़ कीजिएगा मगर आपकी बात मैं बिल्कुल नहीं रखूँगा। ये मेरी ज़िंदगी है, इसे मेरे मुताबिक ही चलने दें प्लीज़, वरना शादी के बाद इसकी हक तलफी हुई तो वो आपको शदीद नागवार गुजरेगी। वो कारदार लबो लहजे में बोलते नाइमा को हिला के रख गया। आज सबके सामने तुम एतराफ़ करोगे इर्तिज़ा मियाँ। वो मज़े से ज़हनो दिल में नए नए मफरूज़े कायम कर रही थी। उसकी सोचों के बरक्स इर्तिज़ा का हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें, इससे बताओ मुझे। नाइमा भी इश्तियाल भरे लहजे में बोलती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्योंकि इर्तिज़ा पे सिर्फ अनाब अहमद का हक है, सिर्फ और सिर्फ उसका। जुनून है वो मेरा, पागलों की हद तक उससे मोहब्बत करता हूँ। दीवानगी, जिद, जुनून, कुछ भी कह सकती हैं आप उसे, मगर इस पागलपने में मुझे कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर मत कीजिएगा, क्योंकि इस सब में किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करूँगा। वो शहादत की उंगली उनकी जानिब उठाते एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर धाड़ कर बोला था। क्या हो गया है तुम्हें इर्तिज़ा? वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है। तुमने सुना नहीं था कि उसके घर वालों ने रिश्ता देख लिया है? तुम भी उसका पीछा छोड़ दो और अब मेरे साथ शादी की हामी खुशी खुशी भर लो। शीला हल्के फुल्के अंदाज में उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। पीछा तो मैं उसका मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। हाँ, उसे दगाबाजी के जुर्म में मौत के दहाने पर भी पहुंचा सकता हूँ मैं, और तुम जानती हो वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो अभी भी पुराने इर्तिज़ा से खौफजदा है। वो शिद्दत भरे अंदाज में गुर्राया। उसके अंदाज और लहजे में जुनूनियत वाज़ेह थी। नाइमा ने दहलकर उसकी जानिब देखा, जो एक नागवार निगाह उस पर डालते कुर्सी को ठोकर मारते लंबे लंबे ढकबरता जीनों की जानिब बढ़ गया। उसके मंजर से हटते ही नाइमा ने शिकवा कुना निगाहों से उसकी जानिब देखा, जो अब नवाज से छुपते छुपाते उन्हें देखकर बाएं आंख दबा रही थी। वो उसके मजाक पर तासुब से नफी में सर हिलाकर रह गई, मगर एक बात तो थी, एतराफ़ तो अपने मुंह से वो खुद ही कर चुका था। उन्हें इस बात की ही बेहद खुशी थी। इसके बरक्स नवाज की पुरसोच निगाहें कभी नाइमा की जानिब उठती थीं तो कभी उसके कमरे के बंद दरवाजे पर। वो ठंडी आह भरकर रह गए थे। आफंदी हाउस में सुबह के 8 बजे ही हर जानिब अफरा तफरी का समा था, क्योंकि 12 बजे की प्रीसा की फ़्लाइट थी तो वो सब भी उसे अलविदा कहने को आए थे। हर जानिब गहमा गहमी छाई हुई थी, मगर आफिया का रोना भी बदस्तूर जारी था। मामा क्या हो गया है? मैं दूसरे मुल्क जा रही हूँ, दूसरे जहाँ में भी। प्लीज़ मेरी कमज़ोरी मत बने मामा, मुझे आपका साथ दरकार है। वो नम लहजे में बोली थी। मेरे ख्याल में अब हमें निकलना चाहिए। सदाम की आवाज़ पर उन सब ने ठटक कर उसकी जानिब देखा था। सदाम, कुछ तो तुम ले जाओ, कुछ को मैं ले आता हूँ और मैं हैवी बाइक पकड़ लेता हूँ। उन सब ने संजीदगी से सदाम को मुखातिब किया तो वह इस बात में सर हिला गया। आप लोग क्यों जा रहे हैं मेरे साथ? मुझे मजबूत रहने दे, मैं आप सबकी मौजूदगी में बिखर जाऊंगी। वो अजियत से बोली। उन सब ने घूरती निगाहों से उसकी जानिब देखा। बस कर जाओ परी, कम अज़ कम अब इतना हक तो तुम हमें दे दो। अनाब और मरियम एक साथ चिढ़कर बोली तो प्रीसा ने खामोशी से चेहरा झुका लिया। कुछ ही देर में आगे पीछे 2 गाड़ियां और इर्तिज़ा के साथ हैविक बाइक पर हादी एयरपोर्ट की जानिब बढ़े थे। किस कदर मुश्किल होता है इस ग्रुप को बयान करना जो हम दिल पर महसूस कर रहे होते हैं। वो बिन स्क्रीन से बाहर झांकते हुए दिल ही दिल में गोया हुई। उसका दिल गोया किसी ने मुट्ठी में भेज लिया था। थैंक यू बाबा, हमेशा एक नए सिरे से मेरी हिम्मत बनने के लिए। वो बाबा के सीने पर सर रखते हुए बोली। आदिल ने नरमी से उसका सर से हिलाते उसके बालों पर लब रखे थे। आई एम प्राउड ऑफ माई प्रिंसेस। वो इसकी पेशानी चूमते हुए मोहब्बत से बोले। उसने मुस्कुराकर उनकी जानिब देखा था। मत जाओ प्रीसा, क्यों एक माँ को ऐसी तकलीफ दे रही हो जिसका मुदावा किसी सूरत मुमकिन नहीं। वो उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते हुए बोली थी। बहुत जल्द आपकी तकलीफ खुशी में बदल जाएगी मामा। वो उनका गाल चूमते हुए मोहब्बत से बोली। चलो परी, अनाउंसमेंट हो गई है, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सदाम उससे नजरें चुराते हुए भारी लहजे में बोला था। मिलेंगे नहीं मुझसे, फिर जाने कब मिलना नसीब हो। वो रोते हुए बोली। गालों पर आंसू तवातर बह रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने जिगर के गोशे को खुद से अलग कर रहा हूँ परी। वो सरसराते लहजे में बोला। परीसा धीमा सा मुस्कुराई थी, मगर उसकी मुस्कुराहट में भी एक कुर्ब था। मैं जा रही हूँ तो क्या हुआ, आप जल्दी से एक प्यारी सी गुड़िया इस दुनिया में ले आएं जो मेरी कमी को पूरा कर दे। फिर आपको मेरी याद नहीं आया करेगी। और हाँ, मेरी अमानत ज़रूर पहुँचा दीजिएगा उन तक। मैं जानती हूँ मुझे एक बहन होकर भाई से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मगर मैं मजबूर हूँ भाई। वो शकीस खोरदा लहजे में बोलती अपने बैग को सख्ती से जकड़ गई। क्या सोचकर अपनी जकड़ गई। 2-3 कदम आगे की जानिब बढ़ते उसने न जाने क्या सोचकर अपनी पुष्ट पर देखा, जहां सबके चेहरों पर एक अजियत रकम थी। प्रीसा के लबों से एक सिसकी बरामद हुई। वो चारों यकलख्त आगे बढ़ी तो प्रीसा तमाम जब्त हारते उनके गले से लगे फूट फूट कर रो दी थी। हमें ऐसा महसूस हो रहा है प्रीसा, जैसे हम अपनी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा खोने जा रहे हैं। प्रीसा नम लहजे में बोली तो वो थके थके अंदाज में मुस्कुराई और उनसे अलग हुई थी। वी विल मिस यू प्रीसा। वो सब मोहब्बत से बोल रहे थे। बेस्ट ऑफ लक। वो बैक वक्त बोले तो प्रीसा बहुत दिक्कत से मुस्कुराई और उनकी तरह ही सर को खम करते अंदर की जानिब बढ़ गई थी। उन सब ने उसकी पुष्ट को निगाहों से ओझल होते देखा था। सदाम, वो तो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती है। क्या करेगी मेरी बेटी वहाँ बिल्कुल तन्हा। मेरा तो सोच सोच के ही दम घुट रहा है।
वो भराए लहजे में बोली। सद्दाम ने नरमी से उनके आंसू पहुंचे। वो जो भी करेगी एक दिन सबको वो दिख भी जाएगा। वो मुस्कुराते लहजे में बोला तो सबने मजबूती से इस बात में सर हिलाया था। फरीसा कहाँ है? इससे पहले कि वो सब वापसी के लिए मुड़ते, सामने से मुस्कुराकर उनकी जानिब आते आशिक ने उन्हें मुखातिब किया, जिसके हाथों में फूलों का एक बुके भी था। वो तो चली गई। फारिस की आवाज़ पर आशिक ने सफ़ेद पड़ते चेहरे समेत उसकी जानिब देखा था। तुमने देर कर दी आने में। खैर कोई नहीं, जब वो लौटेगी उस वक्त मिल लेना। फारिस हल्के फुल्के लहजे में बोला। मैंने सच में बहुत ज़्यादा ताख़ीर कर दी है। वो अजियत से बोलते सर झटक गया। तुम मेरे दिल में निहायत ही खूबसूरत याद बनकर ठहर गई हो, और अब शायद ये ताउम्र मेरे दिल में ही रहेगी। अलविदा फरीसा। वो दिल ही दिल में धीमा सा मुस्कुराते उससे मुखातिब था। बहुत जल्द जिंदगी एक नया रुख लेने वाली थी। 4 साल बाद। वक्त का काम है गुजरना, और वो पर लगाकर उड़ता चला जाता है। ना वो पहले कभी किसी के लिए रुका है और ना आगे कभी किसी के लिए रुकेगा। सबकी जिंदगियां मखसूस डगर पर चल रही थीं, जहां वो सब यार दोस्त अपनी अपनी जिंदगियों में गुम हो चुके थे। वहीं जामिया के इन दिनों से अभी तक निकल नहीं पाए थे। यूनी की वो हसीन यादें उनके जहनों में कुछ इस तरह अटक चुकी थीं कि उनका निकलना नामुमकिनात में से एक था। उन गुजरे अरसे में सबकी जिंदगी मसरूफियत में कहीं गुम हो गई थी। आज का दिन भी इंतहाई मसरूफ होने के साथ साथ खुशगवार भी था। आसमान पर काली घटाओं ने अपना बसेरा किया हुआ था। सूरज का नामो निशान तक नहीं था। दिन में भी रात का पहर मालूम हो रहा था। वहीं सीव्यू पर हर जानिब हजूम छाया हुआ था। लोग हाथों में बड़े बड़े बैनर्स थामे अपने पसंदीदा शख्स के लिए उछल कूद कर रहे थे। शोरों गुल की आवाज़ें चारों तरफ में छाई हुई थीं। तेज हवा के झोंकों के साथ फिजा में उड़ते रेत के जरों की आवाज़ इस शोर में गुम होते कहीं गायब हो जाती। IA की आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही थीं। सीव्यू पर 4 से 5 बाइक सवार जहाज की सी तेज़ी से अपनी स्पोर्ट्स बाइक उड़ा रहे थे। यहाँ पे बाइक्स का एक मुकाबला मुनक्किद किया गया था, जो तकरीबन हर साल किया जाता था। वो सब के सब बाइक सवार अपनी पूरी कोशिशों के साथ ये मुकाबला जीतने की तगोदो में थे, मगर इन सब में सबसे तेज़ रफ्तार एक स्याह रंग की बाइक थी। इस बाइक की रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि वो जहाँ से भी गुजर रही थी, अतराफ में सुर्ख रंग के झंडे लिए खड़े लोग हैरत से मुड़ मुड़ कर उसकी जानिब देख रहे थे। वो बाइक जो उससे रेस लगा रही थी, लाख कोशिश करने के बावजूद उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। कोई अगर आगे जाता भी तो अगले ही लम्हे वो एक बार फिर सबको मात देते तेज रफ्तारी से आगे बढ़ जाता। एक बार फिर स्याह स्पोर्ट कार तमाम बाइक्स को मात देते सबसे आगे की जानिब बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ में लगे स्पीकर्स में से मर्दाना आवाज़ गूंजी थी। साथ ही उस शख्स की रफ्तार मजीद तेज़ हुई। उसने बाइक चलाने के दौरान ही निगाहें न जाने किसी को खोजते हुए पुष्ट पर घुमाई थी, तो अगले ही लम्हे हेलमेट में से झांकती उसकी निगाहें पूरे दिल से मुस्कुराई थीं। पुष्ट पर आ रही बाइक पर मौजूद शख्स ने विक्ट्री का निशान बनाते उसकी परेशानी को किसी सूरत कम करना चाहा और बाइक को किक देते मजीद तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ाया था। उसे ये बात अच्छे से अजबर थी कि अभी फ़िलहाल कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसका मुकाबला कर सके। कुछ फासले पर दिखाई देती विनर लाइन को देख उसकी आंखें मखसूस अंदाज में मुस्कुराई थीं। अगले ही लम्हे उसने अपने दायां हाथ हवा में मुअल्लिक किया था। अब वो सिर्फ बाएं हाथ से बाइक को काबू करते आगे की जानिब बढ़ रहा था। होल्ड माई हैंड बेबी गर्ल, वो पुरजोश कैफियत में चिल्लाया था। अगले ही लम्हे एक निस्वानी हाथ ने तेज़ी से उसके हाथ को जकड़ा, तो उसने अपनी गिरफ्त उसके हाथ में मजबूत कर दी। अब वो दोनों एक हाथ से अपनी अपनी बाइक को संभाले, जबकि दूसरे हाथ से एक दूसरे का हाथ थामे विनर लाइन की जानिब बढ़ रहे थे। उन दोनों को देख माहौल में एक लम्हे को सुकून छा गया। अब वहाँ मौजूद सब लोग हैरत से उन दोनों बाइक सवारों को देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बैक वक्त बोलते एक दूसरे की जानिब देखा और अगले ही लम्हे वो दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ थामे विनर लाइन को क्रॉस कर गए थे। वहां मौजूद आदमी ने एकदम झंडा हवा में लहराया तो माहौल में छाए स्पोर्ट को शोर में बदलने में एक सेकंड भी नहीं लगा था। चक दे फट्टे, इन लोगों में से एक मखसूस मर्दाना आवाज़ फिजा में गूंजी तो इन दोनों बाइक सवारों ने मुस्कुराते हुए अपने अपने सरों में से हेलमेट उतारा था। उनकी आंखें जीत की बदौलत चमक रही थीं। उनके औकब में ही सब बारी बारी अपनी बाइक्स पार्क कर रहे थे। कैसा महसूस कर रही हैं आप मोहतरमा? वो उसके हाथ की पुष्ट को लोगों को से छूते हुए मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला, जो हर शख्स जीतने के बाद महसूस करता है। हाँ, मगर मेरी खुशी इसलिए दोबाला हो चुकी है क्योंकि इस जीत के वक्त मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में था। वो दिलकशी से बोलते मुस्कुरा दी थी। उसने नरमी से उसे अपने हिसार में लिया था। अनाब उसकी हरकत पर खुलकर मुस्कुरा दी और मोहब्बत पाश निगाहों से उसकी जानिब देखा, जो स्याह रंग की पैंट शर्ट पर स्याह रंग की ही जैकेट पहने निहायत वजीह लग रहा था। मान उसकी गर्दन में मौजूद चीज़ पर निगाह पड़ते ही उसने नाराज़गी से उसकी जानिब देखा। वो मज़े से बाएं आंख दबा गया। जहर लगते हो ऐसी हरकतें करते हुए मुझे, वो तिनक कर बोली और बुरी तरह अपने शाने के गिर्द फैला उसका हाथ झटका था। और तुम मुझे शहद की मानिंद मीठी जब भी ऐसे मुझे घूरती हो, वो उसकी नाक दबाते हुए मज़े से बोला। इससे पहले कि वो आगे की जानिब बढ़ते अकब से चार मजबूत हाथों से टांगों से जकड़ते हवा में उठाया था। ब्रीजा और मरियम ने मुस्कुराकर अनाब के साथ लगाया तो वो खुलकर हंस दी।
तुम लोग कब आए? वो हैरत भरे लहजे में बोले। जब यहाँ इश्क माशूकियाँ चल रही थीं। फारिस इन दोनों की नज़दीकी पर चोट करते हुए जल भुनकर बोला। अनाब ने मुस्कुराहट जब्त करते चेहरा झुका लिया। मेरे ख्याल में फारिस के में अंदर जो सब्र का मादा अब तक गुजरे सालों से पनप रहा था, आज उसका इख्तिताम हो चुका है। अब किसी भी जोड़े को देख इसकी रोती बिलखती तड़पती रूह मजीद तड़प उठती है। मरियम उसकी बात पर तमस्कुराना निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए बोली। फारिस ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जिसमें कुछ खास तब्दीली रोनुमा नहीं हुई थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी, चंद साल पहले जैसी। और मेरी ये तड़प तुम ही दूर कर सकती हो, वो दिल चलाने वाले लहजे में गोया हुआ। मरियम के लबों पर फैली मुस्कुराहट सिमट गई। तुम्हें लगा था मैं ये कहूँगा, राइट? हाँ हाँ मरियम, तुम आज भी खुशफहमियों में ही जीती हो, वो जिच कर देने वाली मुस्कुराहट समेत बोला। उसने खून आशाम निगाहों समेत उन सबकी जानिब देखा जो अब टहका लगाते उस पर हंस रहे थे, और वो अपनी बेइज्जती पर जब्त के गूंद भरते पीछे तो आप खाती रह गई। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? स्पीकर में से भारी आवाज़ गूंजी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल ये मुकाबला मुनक्किद किया जाता है, और गुजरे साल 3 सालों में यह मुकाबला हमेशा इर्तिज़ा चौधरी ने ही जीता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो खिलाड़ियों के भी खिलाड़ी हैं, मगर आज मुझे ये अनाउंस करते बेहद खुशी हो रही है कि आज यह मुकाबला इर्तिज़ा चौधरी के साथ उनकी वाइफ अनाब चौधरी ने भी जीता है। पहली बार किसी लड़की ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और जीतने का शर्फ भी हासिल कर लिया। This proves that the husband's companionship has a very good effect on the wife, and the winner of the competition is Mr. and Mrs. Irtaza Chaudhary. Yes, you are great, I see. उसकी बात पर अनाब ने आंखें मेजकर मुस्कुराते हुए इर्तिजा की जानिब देखा था। इर्तिजा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों में नमी तैर रही थी, और वहां मौजूद हर फर्द जानता था कि ऐसा क्यों है। इर्तिजा ने उसे अपने हिसार में लेते नरमी से उसका चेहरा ऊपर उठाया तो वो भीगी सी हंस दी थी। वो ऐसा ही था, किसी की भी मौजूदगी की परवाह किए बगैर उसके छोटे से आंसू पे भी तड़प उठने वाला। अभी भी उसकी बेचैनी देखने लायक थी। Welcome them to the stage with loud applause to receive the trophy which they deserve. Mr. and Mrs. Irtaza Chaudhary, please come on stage. उसकी खुशगवार आवाज़ पर इर्तिजा ने सख्ती से उसका हाथ थामा और अपनी मखसूस चाल चलते स्टेज की जानिब बढ़ गया। स्टेज पर मौजूद फर्द ने गोल्ड मेडल इन दोनों के गलों की जीनत बनाते ट्रॉफी उनकी जानिब बढ़ाई थी। अनाब ने बेसाख्ता अपने कदम पीछे लिए। इर्तिजा को उसकी हरकत शदीद नागवार गुजरी थी। उसने उसके हाथों की उंगलियों में उंगलियां पेवस करते अपने मुकाबिल किया और अपने हाथ पीछे ले लिए थे। वट हैपन मिस्टर इर्तिजा? वो नासमझी से गोया हुए। इर्तिजा ने खुद 2 कदम पीछे लेते उसे खुद से आगे किया था। अनाब ने सख्ते की कैफियत में उसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए फ़कत मोहब्बत का आंसर ही नुमाया था। आई वॉन्ट यू टू गिव दिस ट्रॉफी टू माई वाइफ, इट्स मोर ऑनर देन विनिंग फॉर मी। उसके खूबसूरत लबो लहजे पर अनाब ने बेयकीनी की कैफियत में उसकी जानिब देखा। उसकी आंख से एक आंसू टूटते उसके गाल पर बह गया था। ट्रॉफी हाथ में लेते उसके हाथ कँपाए थे। किस कदर मुश्किल था उसके लिए ये सब। कितना इंतज़ार किया था उसने इस जीत का, और आज वो दिन उसकी ज़िंदगी में आ गया था। थैंक यू, वो नम लहजे में बोली, मगर उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। एनी थिंग फॉर यू माई लेडी, वो दिल के मुकाम पर हाथ रखते झुका और दिल फरेबी से बोला। अनाब उसकी हरकत पर खुलकर हंस दी थी। मेरे ख्याल में अब हमें घर चलना चाहिए। मुकाबला हो गया, जीत भी हासिल हो गई, चलो अब कुछ खिला भी दो। फारिस की हमेशा वाली दुहाई पर उन सब ने तासुब से उसकी जानिब देखा था। हाँ चलो जाओ अपने घर, अल्लाह हाफिज़। इर्तिजा ने पहलू बचाते हुए अनाब की कलाई थामी। इससे पहले कि वो आगे की जानिब बढ़ता, फारिस ने अकब ही से उसके कॉलर को थामते झटका दिया था। वाह जनाब, अपनी बीवी को हर साल एक नई हैवी स्पोर्ट बाइक तोहफे में देता है, और हमें तो कुछ खिला नहीं सकता इस जीत की खुशी में। शेखों को तो ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। आजकल के ज़माने में हर एक शख्स कमीना है, वो दांत पीसते हुए तड़क कर बोला। मैं आज तक सोचता आया कि मेरा बेटा किस पर चला गया है, मगर आज अंदाज़ा हो रहा है मुझे कि वो तुझ पर चला गया है खाने के मामले में। मगर हैरत की बात यह है कि ये सोच मुझे पहले क्यों नहीं आई। हादी दांत किचकिचाते हुए चटक कर बोला तो बरीजा ने सदमाती कैफियत में उसकी जानिब देखा, जो अपने फ़कत 8 माह के बेटे के मुतल्लिक ऐसी बात कर रहा था। शर्म लिहाज तो जैसे वो कहीं बेच आया था। बस कर जाओ हादी, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उसने पिछले 8 माह में तुम्हारा बैंक बैलेंस हड़प लिया हो। हाँ अलबत्ता तुम उसका सीरी लेग बहुत शौक से खा जाते हो। वो उसके शाने पर मुक्का जड़ते खफा खफा सी बोली। उसकी बरजस्ता बात पर फारिस और इर्तिजा का कहका बेसाख्ता था। अनाब ने चौंक कर उसके बेटे के मुतल्लिक इस्तफसार किया था। हाइज़म को कहाँ छोड़ कर आई हो? मामा के पास है, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था, शोर शराबे में नहीं लेकर जाना। वो शाने उचकाते हुए बोली तो वो मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई। बच्चे की बात करते हुए उसके चेहरे पर छाई खुशी किसी की निगाहों से मख्फी भी नहीं थी। इससे पहले कि कोई बात को तवारत बख्शता, इर्तिजा अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल के बदौलत तक जानिब हुआ तो नाइमा की कॉल थी। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन कान से लगाया तो वह पहली फुर्सत में उसे वापस घर लौटने की ताकीद करते कॉल काट गई। उसने भी उनकी बात सुनते घर जाने को ही तरजीह दी थी। तुम पहले घर जाओ और हाइज़म को लेकर आओ, उसके बिना मेरे घर में मत घुसना। अनाब ने सख्ती से हादी को ताकीद की, जो हमेशा की तरह इर्तिजा के साथ बाइक पर आने वाला था, और खुद फारिस की गाड़ी में बैठते एक झटके से दरवाज़ा बंद किया था। बरीजा ने मुस्कुराहट दबाकर इन दोनों की जानिब देखा, जिनके चेहरे पर 12 बज चुके थे।
बड़ी हवेली में सुबह का उजाला बेहद हसीन था। फिजा में फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी जो रात होने वाली बारिश की बदौलत थी। ऐसे मौसम में वो खिड़की के पार देखते धीमा सा मुस्कुरा रहा था। खिड़की से जब भीगी भीगी हवा अंदर आती तो उसके वजूद में सरायत करते उसे एक खूबसूरत एहसास से रोशनास कराती थी। बिलाशुबह मौसम ने बहुत ही खुशगवार अंगड़ाई ली थी। मान खिड़कियों के पट तेज हवा की बदौलत यूं ही आपस में टकराए उसकी सोचों का तसलसल सरस से टूटा था। उसने चौंक कर दीवार पर नस्ब घड़ी की जानिब देखा जो सुबह के 7 बजा रही थी। उसके जहन में एकदम झमाका सा हुआ। वो तेज कदमों से बाहर की जानिब बढ़ा। शहर में दाखिल होते ही उसकी निगाह किचन में काम करती शाइस्ता की जानिब उठी जो पूरी दिलजमई से नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। शहराम पर निगाह पड़ते ही वो रुख उसकी जानिब मोड़ते हुए होले से मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग सर। वो धीमा सा मुस्कुराई। शहराम ने इस बात में सर हिलाते सपाट चेहरे समेत घड़ी की जानिब देखा। अभी तक जागा नहीं? उसके संजीदा लहजे पर शाइस्ता ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। सर मैं गई थी बाबा को जगाने मगर वो जागे ही नहीं। इतनी नींद के पक्के हैं। रात में भी उन्हें बहुत टोका था जितनी जल्दी सोने के लिए, मगर जिस दिन आप घर नहीं लौटते रात में वो ऐसे ही करता है। वो तफसील से बताते हुए बोली तो शहराम के चेहरे पर सख्ती का तासुर उभरा। वो सर झटकते तेज कदमों से राहदारी की जानिब बढ़ा जहाँ दूसरा कमरा उसने खास तौर पर गाजान के लिए तामीर करवाया था। कुछ अरसा कबल वक़्तदार की वफात के बाद ही उसने सदफ को हायर किया था ताकि वो गाज का अच्छे से ख्याल रख सके, क्योंकि उसके शोरूम में जाते ही वक़्तदार उसे संभाल लिया करते थे, मगर जब से उनकी वफात हुई थी उसे संभालना बेहद मुश्किल हो गया था। इसी बदौलत रात को कभी कभार उसे काम से लौटते ताखीर हो जाया करती थी। इसी बदौलत वो अच्छा खासा बिगड़ता चला जा रहा था। उसके कमरे में दाखिल होते ही एक नज़र बेड की जानिब देखा जहां वो कंफर्टर में दुबका करवट के बल लेटे पुरसुकून नींद सो रहा था। शहराम ने खिड़की के पर्दे खींचे तो बाहर से आने वाली छन से रोशनी फैलते पूरे कमरे में अपना बसेरा कर गई। गाज, उसने सर्द लहजे में उसे पुकारा मगर वो जूं का तुम वैसे ही पड़ा रहा। शहराम ने नफी में सर हिलाते बेड पे उसके नजदीक की जगह संभाली और उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को संवारा था। उसने सर्द लहजे में उसे पुकारा मगर वो जूं का तूं वैसे ही पड़ा रहा। शहराम ने नफी में सर हिलाते बेड पे उसके नजदीक की जगह संभाली और उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को संवारा था। तो उसने होले से अपनी बादामी आंखें खोलते मुकाबिल की आंखों में देखा और निगाहों का जाविया बदलते नाराजगी से करवट बदल गया। शहराम ने गहरा सांस भरते एक नज़र पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई जहां पूरा कमरा फैला हुआ था। खिलौने, बिस्तर, उसकी किताबें, वो सब के गूंज भरकर रह गया। ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने गाज? वो सख्त लहजे में उससे इस्तफसार कर रहा था। 4 साला गाजान खान ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। शहराम जानता था वो नाराजगी का इजहार कर रहा है और उसकी नाराजगी शुरू से ही तवालत ये होती थी, तभी खुद को उसकी बेरुखी के लिए तैयार करने लगा। ये हाल मैंने आपकी गैर मौजूदगी में बनाया है डैड, इसीलिए बोलता हूँ आप मेरे पास रहा करें। वो शाने उचकाकर बोला। शहराम ने ताज्जुब से उस 4.5 साला बच्चे की जानिब देखा जिसके चेहरे पर सरदपन छाया हुआ था। सुर्ख सफेद रंगत का हामिल, बादामी आंखों में गुस्सा जो हमा वक्त ठहरा रहता था। चेहरे पर संजीदगी लिए सबके मुताबिक वो मुकम्मल तौर पर शहराम का परतू था और उसमें कोई शक भी नहीं था। शहराम को हमेशा उसकी आदत देख उस पर खुद का ही गुमान होता था। खैर वक्त बहुत कम है, स्कूल जाना लाजिम है, आप जाएं। सबसे पहले शाइस्ता आंटी से बोलें कि आपके कमरे का हुलिया दुरुस्त करें। आप फ्रेश होंगे और फिर नाश्ता करके स्कूल जाएंगे। वो तहक्कुम भरे लहजे में बोला, आई एम सॉरी डैड, मगर मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। आई डोंट लाइक हर। वो नाक मुंह चढ़ाकर कुर्सी खींचते वार्डरोब के सामने लाया और उसके चढ़ते पांव ऊंचे कुर्ते अपना यूनिफॉर्म निकालते छोटे छोटे कदम उठाते वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। शहराम उसके तौर तवार देखता रह गया। उसके वॉशरूम में घुसते ही शहराम ने कमरे में हल्का फुल्का हाथ मारा था। गुजरे वक्त में इतना तो उसे अंदाजा हो गया था कि गाजान को शाइस्ता कुछ खास पसंद नहीं आई थी, तभी उसके हर काम से चिढ़ता था। उसके बाहर निकलते ही शहराम ने नरमी से उसके बालों को संवारते उसको अपनी गोद में भरते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। डाइनिंग पर पहुंचते ही उसने उसे कुर्सी पर बिठाया और शाइस्ता को नाश्ता लाने का ऑर्डर जारी किया। खुद उसका ध्यान अपने लैपटॉप की जानिब मबजूल हो चुका था। मैं उनके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा डैड, वो अटल लहजे में गोया हुआ। शहराम ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें उठाते अपने लगते जिगर को देखा जिसकी मनमानियां अरूज पे थीं। चलो ठीक है, उठो फिर बाहर से कर लेंगे। वो लैपटॉप बंद करते उजलत से बोला। गाजान उसकी बात पर वहीं टिका रहा और पुरसुकून निगाहों से उसकी जानिब देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी तबीयत खराब करवा लूं बाहर का खाकर? वो गंदा होता है, वो बेयकीनी भरे लहजे में बोला। शहराम ने खुद पर जब्त करते दांत पे दांत जमाए और बेसाख्ता अपनी पेशानी मसली। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा गाजान खान? वो सर्द लहजे में बोला। माथे की रगें उभर कर नुमाया हो रही थीं। तो फिर आप बाहर के खाने का जिक्र भी मत किया करें। वो धीमे लहजे में बोलते मेज को बजाने लगा। शहराम ने चिढ़कर उसकी जानिब देखा। किसने बोला है आपको ये बाहर का खाना कभी कभार खाने से भी तबीयत खराब हो जाती है? वो कुर्सी से पुश टिकाते नासमझी से बोला। वो दोनों इतनी संजीदगी से आपस में महवे गुफ्तगू थे जैसे उससे जरूरी कोई बात ही ना हो। ये आपने बोला था डैड। खैर अब आप उठे और मुझे सिर्फ दूध ही दे दें बस, वो एहसान करने वाले अंदाज में बोला। तो शहराम ने तासुब से उसकी जानिब देखा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ।
मिस शाइस्ता, आप बाकी घर का काम देख लें, किचन का काम मैं देख लेता हूँ। गाज को मेरे हाथ का नाश्ता करना है। वो शर्ट की आस्तीन चढ़ाते संजीदगी से गोया हुआ तो वह बाद में सर हिलाते वहां से बाहर की जानिब बढ़ गई। गाजान ने नाक मुंह चढ़ाते उसकी जानिब देखा। शहराम ने घड़ी में वक्त देखते उजलत में दूध गिलास में अंडेला और उसकी जानिब बढ़ाया था। जवाब में उसने सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। क्या आज से पहले मैंने कभी चीनी के बगैर दूध पिया है? उसके सवालिया अंदाज पर शहराम ने गहरा सांस फिजा के सबूत किया और उसके दूध में चीनी मिलाते गिलास उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे उसने खामोशी से थामते लबों से लगा लिया। इस काम से फरागत हासिल करते ही शहराम ने उसे लेते कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे। आपका स्कूल कैसा जा रहा है? शहराम ने गाड़ी का गियर बदलते संजीदगी से इस्तफसार किया तो उसने अंगूठे और उंगली को आपस में मिलाते A1 कहा था। शहराम ने मुस्कुराकर उसके बाल संवारे थे। डैड, कल मेरी क्लास है ना तीर कमान की? वो पुरजोश की कैफियत में बोला तो शहराम ने होले से इस बात में सर हिलाया। उसे इस बाबत याद हो या ना हो, मगर गाजान को यह बात अच्छे से याद रहती थी कि वो वीकेंड पर उसकी तीर कमान की क्लास लाजिम होती है। स्कूल से बाहर गाड़ी रोकते ही उसने बाहर निकलता देख हाथ हिलाया तो जवाब में उसने खशमगी निगाहों से उसकी जानिब देखा। दिस इज नॉट फेयर, आप अंदर नहीं आएंगे? वो शिकवा कुना लहजे में बोला तो शहराम ने एक नजर अपनी कलाई में बंदी घड़ी में वक्त देखा। वापसी पे माई चाइल्ड, अभी डैड के पास वक्त की बहुत कमी है। वह नरमी से उसे कायल करने वाले अंदाज में बोला तो वो होले से इस बात में सर हिलाते अंदर की जानिब बढ़ गया। उसके अंदर जाते ही शहराम ने गाड़ी शोरूम की जानिब मोड़ी थी। गाज, आज आप फिर से लेट आए हैं। उसके क्लास में दाखिल होते ही नसवानी आवाज उसकी समातों में गूंजी तो उसने चौंक कर मैम की जानिब देखा। मैम, डैड लेट करते हैं, गाज नहीं। वो शाने उचकाकर बोलते सीट पर विराजमान हो गया। जहन के सारे धागे अपने साथ बैठे 2-3 बच्चों की जानिब मबदूल हो चुके थे। आज तो मेरी मामा ने लंच में फ्राइज दी है। मेरी मामा ने भी नूडल्स बनाकर दिए हैं, इतने यमी हैं। गाज, तुम खाओगे क्या? उस बच्चे की चहकती आवाज पर गाज ने होले से सरनफी में हिलाते चेहरा झुका लिया। तुम क्या लाए हो गाज? गाजान आज कुछ भी नहीं लाया। उसकी बात पर वो धीमे लहजे में बोला। चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो रोजाना की इन बातों से आजिज आ चुका था। तुम क्यों नहीं लाए गाज? क्या तुम्हारी मामा तुम्हें लंच नहीं देती? उस बच्ची की बात पर उसने सख्ती से मुठ्ठियां भेजते उसकी जानिब देखा। उसका जब तब टूट रहा था। उसकी मामा होंगी तो देंगी ना? वो सब हंसते हुए बोले। गाज ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। उसका हाथ सख्ती से थामा। उसे छुड़वाने की तगोदो में इस बच्चे का सर जोर से बेंच पर लगा था, जिसकी बदौलत खून की एक लकीर उसके चेहरे पर बनती चली गई। गाजान ने इश्ताल भरी निगाहों से उसकी जानिब देखा। क्लास में मौजूद टीचर ने उनके नजदीक पहुंचते सरस से उन दोनों को लेते कदम प्रिंसिपल ऑफिस की जानिब बढ़ाए थे। कुछ ही देर बाद शहराम को उजलत में ऑफिस बुलाया गया। गाजान, ये क्या हरकत है बेटा? वो उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेते सख्ती से गोया हुआ। गाजान ने गुस्सीली निगाह उस लड़के पर डाली। ये जानबूझकर गलत बात कर रहा था डैड। मैं लंच नहीं लाता तो ये मुझे ये कहकर छेड़ रहे थे कि मेरी मामा नहीं है। बोलते बोलते उसका लहजा भीग गया था। शहराम के कान उसकी बात पर साएं साएं करने लगे। उसने तड़प कर उसकी जानिब देखा और एक नजर उसे देखते नरमी से अपने हिसार में लिया। उसके चेहरे पर एक तारीख सा साया ले आया। चाहे आपकी मामा नहीं है मेरे शेर, मगर ये हरकत तो ठीक नहीं। मैं नहीं चाहता कभी भी आपका शुमार गलत बच्चों में हो। वो उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते नरमी से बोला था। से सॉरी टू हिम। वैसे सॉरी से काम कोई नहीं बनने वाला, मगर फिर भी। वो उसे डपटने वाले अंदाज में बोला तो उसने फौरन से पहले उसकी हदायत पर अमल किया था। आई एम सो सॉरी, इट्स टोटली माई फॉल्ट, बट आई विल बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। वो अपने मखसूस लबो लहजे में बोलते कुर्सी खींचकर उठ खड़ा हुआ। उसने नरमी से गाजान का हाथ थामा और उस बच्चे का सर से हिलाते वहां से निकलता चला गया। गाजान ने एक नजर उसका चेहरा जांचा जहां सर्दपन छाया हुआ था। उसे ये बात अच्छे से अजबर थी कि अब उसकी क्लास पक्की है। गाड़ी में बैठकर भी मुकम्मल खामोशी का राज था। डैड सॉरी। गाड़ी की खामोशी में उसकी मासूमियत से भरपूर आवाज गूंजी तो शहराम ने मसरूफ से अंदाज में उसकी जानिब देखा। इट्स ऑल राइट। वो गहरा सांस भरकर रह गया। गाजान सरस से अपनी जगह पर खड़ा होते उसकी गोद में चढ़कर बैठ गया। शहराम अब उससे बातें करने के दौरान साथ साथ ड्राइविंग में भी मसरूफ था। हम कहाँ जा रहे हैं? वो उसके कंधे से लगते सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला। शहराम ने उसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा भरोसा दिया था। फुप्पो के घर। उसके जवाब पर गाजान ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। अगले ही लम्हे उसने मुंह बसोर लिया। मुझे वहां नहीं जाना डैड, मुझे वहां जाना नहीं पसंद। वो मुंह के जाविये बिगाड़ता हुआ बोला। बुरी बात। वो आपकी फुप्पो है ना? फूफो के पास जाना है, मगर नूरी के पास नहीं। वो अच्छी नहीं लगती। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोला तो उसके जवाब में खुलकर हंस दिया। तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत के बाद गाड़ी आफरीदी हवेली की हदूद में दाखिल हुई थी। तमाम मुलाजमीन उसकी आमद पर चुकन्ना होते सीधे हुए थे। मामू अंदर कदम रखते ही नूरी तकरीबन भागती हुई उसके नजदीक आई और उसकी जानिब अपनी बाहें फैलाई थीं। शहराम ने झुककर उसे अपनी बाहों में भर लिया। गाजान ने नागवारी से उसकी जानिब देखा और मुंह फेर लिया। हमारे मामू आ गए। वह परखा को बुलाने की खातिर चीखी थी। परखा जो किचन में काम में मसरूफ थी उसकी पुकार पर भागने वाले अंदाज में उस तक आई और गाजान की पेशानी पर बोसा दिया था। वह होले से मुस्कुरा दिया था। परखा तो उसकी मुस्कुराहट के सदके वारी चली गई। परखा शहराम के सीने से लगी अंदर की जानिब बढ़ गई। अब वहां सिर्फ गाजान और नूरी ही रह गए थे।
یہ میرے سامنے امالے امالے نہ کیا کرو، مجھے تو تم یوں بولتی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ دنک کر بولا۔ نوری نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا جو بلا وجہ ہی اسے گھورتا رہتا تھا۔ غازان نے ایک نظر گلابی رنگ میں ملبوس چھوٹی سی لڑکی کی جانب دیکھا جو گڑیا کی مانند دکھائی دیتی تھی، مگر اسے اس کی زبان بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ بھی تو پٹھان تھا مگر وہ کچھ زیادہ ہی بولتی تھی اس کے مطابق۔ ایسے ہی بولتا ہے لالا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ غازان نے خونخوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تو تم ایسے بولا کرو مگر ہمارے سامنے نہیں لالا کی بچی، وہ دانت پیس کر بولتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہاں سے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ نوری نے اس کی پشت کو دیکھتے چھوٹی سی ناک بسوری۔ وہ جیسے ہی اندر پہنچا شہرام لیپ ٹاپ لیے صوفے پر براجمان ہو چکا تھا، اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ شہرام کو کام کے وقت دخل اندازی کس قدر بری لگتی ہے، تبھی اس کے بیگ سے اپنا ٹیب نکالتے اس میں کار والی گیم لگا کر بیٹھ گیا۔ شہرام جو لیپ ٹاپ پر نیوز پڑھنے میں محو تھا، اس کی نگاہ ایک منظر پر رکتے ساکت ہوئی تھی۔ چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا، اس کے لب کچھ کہنے کو کپ کپائے تھے۔ معروف ڈیزائنر پریسا افندی، اس کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے ایک نظر گیم میں مصروف غازان پر ڈالتے لیپ ٹاپ خاموشی سے بند کر دیا، جیسے ہمیشہ کی طرح وہ اس کی یاد کا باب بند کرتا آیا تھا۔ آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود اس کا دل صرف اسی کے نام پہ دھڑکتا تھا۔ برلن، جرمنی۔ یہ منظر ایک 2 منزلہ انتہائی خوبصورت فلیٹ کا ہے جو پہاڑوں کے بیچوں بیگ انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ 2 کمروں پر مشتمل ایک فلیٹ تھا جسے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کسی مہارت رکھنے والے انسان نے اس کام پر خاصا دھیان لگایا تھا۔ بائیں جانب دائیں تو ایک اوپن کچن تھا جہاں ایک لڑکی کھڑی کافی میکر سے کافی بنانے میں محو تھی۔ اس کی پشت پر بکھرے لمبے سیاہ بال خوبصورت لگ رہے تھے۔ سفید اور گلابی رنگ کے لانگ شرٹ اور فلیپر میں ملبوس کلائی میں گھڑی پہنے وہ ساتھ ساتھ کافی پی رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی کان میں لگے بلوٹوتھ کے ذریعے کسی کو ہدایات دینے میں مصروف تھی۔ اوکے، آئی ول بی دیئر ان سم ٹائم، اس نے نرمی سے بولتے کال کٹ کرتے قدم لاؤنج کی جانب بڑھائے اور صوفے پر دونوں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ گود میں لیپ ٹاپ اور ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے وقتاً فوقتاً چسکیاں بھر رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ پر کسی کو ویڈیو کال ملائی جو اگلے منٹ ہی دوسری جانب سے اٹھا لی گئی تھی۔ پھپھو جان، سامنے سے نمودار ہوتا تاج محل کا چہرہ دیکھ اس نے محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسا ہے پھپھو کا بچہ؟ اچھا، ویسے یہ یہاں پھپھو نہیں لکھا ہوا، یہ انہوں نے پھپھو کے لیے اپھو لکھا ہوا ہے، تو مجھے تو اس ورڈ کی ویسے سمجھ نہیں آ رہی ہے اپھو کیا ہوتا ہے مطلب اب، اور یہ مجھے پڑھنے میں بھی بڑا آکورڈ سا لگے گا تو میں نہیں پڑھ رہی ہوں۔ ایک تو پھر یہ مطلب ہماری رائٹرز ہیں نا جو لکھتی ہیں اچھا لکھتی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتی ہیں، لیکن یہ اتنے ڈیفیکلٹ نام کیوں چوز کرتی ہیں؟ اب یہ نام پتہ نہیں میں نے زندگی میں نہیں سنا، یہ اب اس کا تعظیمل ہے یا کیا ہے، یہ تعظیمل ہی ہو سکتا ہے میرا خیال ہے۔ تو اتنے ڈیفیکلٹ نام چوز کرنے کی بھائی کیا ضرورت ہے؟ ایک بچوں کا سمپل نام بھی تو دنیا میں ہمارے پاکستان میں ہمارے بچوں کے نام سمپل ہی چلتے ہیں سب کے، تو یا تو اب ایسا ہے کہ میں بھی جب پھپھو بنوں تو میں بھی اپنے بھتیجے کا نام تعظیمل رکھ دوں گی، بیسٹ نام ہے یہ، پر لیکن اس کا میننگ کیا ہے؟ کوئی مجھے اس کا میننگ بتائے کامنٹ میں لازمی۔ چلیے نیکسٹ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں پھپھو، نیکسٹ سنڈے میرا برتھ ڈے ہے، آپ آئیں گی نا؟ وہ منت کرنے والے انداز میں بولی۔ اچھا یہ بولی، یہ مطلب یہ لڑکا نہیں ہے، یہ لڑکی ہے جو بھی ہے تعظیمل، یہ لڑکی ہے، ٹھیک ہے۔ پریسا نے گہرا سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ نیکسٹ سنڈے تو نہیں چندہ مگر بہت جلد پھپھو پاکستان آنے والی ہیں۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولی تو اس نے ناراضگی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اگلے ہی لمحے زیمل کے عقب سے عافیہ اور عفیفہ کا چہرہ نمودار ہوا۔ بس کر جاؤ تم، یہ لارا ہم سب کو پچھلے 4 سالوں سے لگا رہی ہو۔ عفیفہ ٹھیک ٹھاک ناراضگی کا اظہار کر گئی۔ اس کی بات پر پری کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ عافیہ نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ انہیں اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ عادل کا اس وقت کا فیصلہ کس قدر اچھا تھا۔ وہ ہنوز ممتا بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مان پریسا کا فون بجا تو اس کے مینیجر کی کال تھی۔ اوکے، میں رات کو فون کروں گی۔ لو یو آل، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس بار میں جھوٹ بالکل نہیں بول رہی، میں واپس ضرور آؤں گی۔ اماں میرا بچہ، پھپھو جلدی سے آ کر آپ کو سینے سے لگانا چاہتی ہے، وہ نرمی سے بولتی آخر میں زیمل کو فلائنگ کس بھیجتے ہوئے بولی جسے اس نے سرے سے کیچ کرتے اپنی عادت کے مطابق دل کے مقام پر رکھا تھا۔ پریسا نے مسکراتے لیپ ٹاپ بند کیا اور فون اٹھایا تھا۔ میم، یور کلائنٹ از ویٹنگ فار یو، اٹس این ایمرجنسی۔ اس کی بے چین آواز پر پریسا نے سرے سے فون کاٹتے بالوں کو جوڑے میں مقید کیا اور اسی لباس کے ساتھ گلے میں مفلر ڈالتے اپنا بیگ بازو پر ڈالتے بھاگنے والے انداز میں باہر کی جانب بڑھی تھی۔ لفٹ میں جاتے وہ آنکھوں میں گوگلز لگانا نہ بھولی۔ تقریباً اگلے 2 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہی اس کی گاڑی اپنے شو روم کے سامنے رکی تھی۔ وہ تیزی سے نکلتی اندر کی جانب بڑھی۔ گڈ مارننگ میم، ہیو اے نائس ڈے، اس کی مینیجر مسکراتے لہجے میں بولی تو پریسا نے بھی مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا اور سیدھا اپنے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ تھینک یو لینا، وہ سر کو خم کرتے ہوئے بولی۔ اپنی میم کی یہی ادا تو اسے بہت بھاتی تھی کہ وہ
डाउन टू अर्थ पर्सन थी। अना जिद गरूर का तो उसमें नामो निशान तक नहीं था। इतनी बुलंदियों को छूने के बावजूद भी वो बिल्कुल सादा सी लड़की थी। आई एम रियली सॉरी, इट्स एन इमरजेंसी, दैट्स वाई आई एम लेट, प्लीज हैव अ सीट, वो माजरत खाना लहजे में बोली। उसके क्लाइंट ने मुस्कुराती निगाहों से उसकी जानिब देखा, जिसके लबों पर हमा वक्त एक मुस्कुराहट बिखरी रहती थी जो उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करती थी। नो 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 प्रॉब्लम, एक्चुअली माई मैरिज इज हैपनिंग इन नो प्रॉब्लम, एक्चुअली माई मैरिज इज हैपनिंग इन हैस्टी नाउ, दैट्स वाई, वो अंग्रेजी लबो लहजे में बोली। प्रीसा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। वेल नाउ यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस यू वांट टू कैरी, वो अपना लैपटॉप खोलते हुए मसरूफ से अंदाज में बोली। मुकाबिल ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। माई ओपिनियन विल नॉट बी देयर एट ऑल बिकॉज माई फ्यूचर हस्बैंड वॉन्ट्स मी टू वेयर अ पाकिस्तानी ड्रेस, वो शर्मीले लहजे में बोली। प्रीसा ने सताइशी अंदाज में उसके चेहरे पर बिखरते गुलाल को तका था। उसे उसकी किस्मत पर साख्ता रश्क सा आया। इट्स मीन योर हस्बैंड बिलोंग्स टू पाकिस्तान, वो समझने वाले अंदाज में बोली और साथ ही अपने मशहूर ब्राइडल ड्रेसेस निकालते लैपटॉप का रुख उसकी जानिब किया था, जो पुरशौक निगाहों से सुर्ख, सब्ज और सुनहरे रंगों में घिरे मुख्तलिफ लिबास देख रही थी। महान एक लहंगे पर जैसे उसकी निगाह ठहर सी गई, वो सताइशी अंदाज में उस लहंगे को उंगलियों के पूरों से छूकर देख रही थी। या दिस वन इज परफेक्ट फॉर माई सेल्फ बट द लेंथ शुड बी शॉर्ट, उसने एक लहंगे की जानिब इशारा किया तो प्रीसा ने मैनेजर को हुक्म सादिर करते दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में बेबस करते उसकी जानिब अपनी तमाम तवज्जो मबजूल करवाई। वो उसके शोहर का नाम जांचना चाह रही थी ताकि जालीदार दुपट्टे पर दोनों का नाम लिखवा सकती। व्हाट्स योर हस्बैंड नेम ब्यूटीफुल, वो पूरा तमाद लहजे में बोली। साथ साथ उंगलियां तेजी से लैपटॉप की बोर्ड पर हरकत करने में मसरूफ थीं। इस दौरान उसके मैनेजर ने उस लहंगे की तमाम तर तफसीलात निकलवाई थीं। अब बस उसे स्लिप पर उतारना बाकी था। हिज नेम इज शहराम, इसकी बात पर प्रीसा ने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते मुस्कुराती निगाहों से उसकी जानिब देखा और एक फाइल उसकी जानिब बढ़ाई थी, जिसे उस लड़की ने खामोशी से थाम लिया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लाइफ, वो उसे मुसाफिया करते हुए प्रोफेशनल अंदाज में बोली और अपनी गाड़ी की चाबियां उठाते सरल से वहां से निकली थी, क्योंकि उसे आगे भी कुछ काम सर अंजाम देने थे। उनके काम में किसी भी किस्म की हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। गॉड इट शुड बी बेस्ट, होप सो शी लुक्स ग्रेट, उसे आंखों में गॉगल्स लगाते मजबूत चाल चलते हुए साथ साथ उससे भी मुखातिब थी। उसकी मैनेजर ने उसके तहक्कुम भरे लहजे पर इस बात में सर हिलाया था। ऑफिस से बाहर निकलते ही ऊंचे लंबे पहाड़ों को देख जी जान से मुस्कुराई थी, दिल में कहीं गुदगुदी सी हुई थी। यस प्रीसा अफंदी इज बैक, और अब इस प्रीसा का वापस लौटना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान वापस लौटना अब मेरी ख्वाहिश ही नहीं बल्कि जिद भी बन चुकी है। वो दोनों हाथों को कमीज की जेबों में अड़सते खुले दिल से मुस्कुराई। हवा के जोर से उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, साथ ही उसका दिल, उसका वजूद उसकी धमाकेदार वापसी पर नाजा था। उसने सरशारी की कैफियत में आसमान पे आज़ादी के साथ उड़ते परिंदों को तका था। हर साल सिर्फ इर्तिजा ही ये ट्रॉफी लेकर आता है, आज मेरी बेटी भी लेकर आई है, तो इस खुशी में जश्न भी दोबाला हो जाना चाहिए। नाइमा हंसकर उसकी पेशानी चूमते हुए बोली तो नवाज ने जोर शोर से इस बात में सर ही लाया था। और ये जीत भी मुझे इर्तिजा की बदौलत ही मिली है मामा, वो मुस्कुराते लहजे में बोली। हर कामयाबी के लिए इस नालाई को क्यों जिम्मेदार ठहराती हो, कुछ अपनी भी कोशिश है या नहीं तुम्हारी। नाइमा अब की बार सचमुच खफा दिख रही थी, क्योंकि वो शादी के अरसे बाद ही यही सब करती आ रही थी। कुछ भी उसे हासिल होता, कोई कामयाबी मिलती, तो वो इर्तिजा को ही इस जीत का ताज पहनाकर खुद बरियोजिमा हो जाया करती थी। मुझे नहीं लगता मामा कि मेरी इसमें अपनी कोई खुशी है, मैंने तो हिम्मत ही हार दी थी। मुझे एक नए सिरे से जिंदगी देने वाला, मुझ में हिम्मत उजागर करने वाला, हत्ता कि इस मुकाम तक पहुंचाने वाला सिर्फ और सिर्फ वही है। मैं इस बात से चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती, वो भीगे लहजे में बोली। बोलते बोलते उसका लहजा भीग गया था। आंटी जान, अगर आप सबकी बातें वगैरह हो गई हो तो मेरी जानिब नजरें करम करें और जिस जश्न की आप बातें कर रही थी उसका एहतमाम खाने की मेज पर भी कर दें। वो क्या है ना, ग्राउंड में आपके बेटे और बेटी का नाम चीख चीख कर गला सूख गया है, अब सिर्फ खाने की तमन्ना है। फारिस जो गाड़ी पार करके अंदर की जानिब आ रहा था, उन सबकी बातें सुन मस्करेपन से बोला और ढीले ढाले अंदाज में सोफे पे ही टिक गया। नाइमा उसकी बात सुन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फ्रिज से फारिस की मनपसंद खीर निकालकर उसकी जानिब बढ़ाई थी। ये खास तौर पर उन्होंने उसके कहने पर ही बनाई थी। फारिस ने चमकती वालिहाना निगाहों से इस खीर के बाउल को तका। फारिस, ये क्या हरकत है, कैसे भूखों की तरह देखते हो तुम खाने को। मरियम कोर से दांत पीसते हुए इस नतीजे को देखकर बोली, कौन कह सकता था कि ये कामयाब बिजनेसमैन था। यम यम, मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम भी कभी मुझे इस निगाह से देखो जिस निगाह से मैं खाने को देखता हूँ, वो बाएं आंख दबाते मजे से बोला। मरियम ने उसे देख दांत खिचखिचाए, अलबत्ता इर्तिजा और अनाम मुस्कुराहट दबाकर रह गए। खुश फहमियां तो चेक करो जनाब की, वो सर झटकते तो मुस्कुराना लहजे में बोली। फारिस की आंखें उसकी बात पर भरपूर अंदाज में मुस्कुराई थीं। हाँ वेरी नाइस, शादी के बाद जनाब जनाब करके बुलाना, बहुत हसीन लगेगा। वो उसे मुफ्त का मशवरा देते हुए जहर से भी बुरा लगा था।
مریم نے مذاق اڑانے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ شادی، اور وہ بھی تم سے؟ وہ اناب کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے تمسکرانہ انداز میں ہنسی۔ فارس نے الجھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مگر یم میں نے اپنی بات تو کی ہی نہیں، میں تو تمہیں اس نام سے اپنے شوہر کو مخاطب کرنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہولے سے چپت لگاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بکواس پر مریم کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ اب کی بار اس کی بات پر ارتضا اور اناب کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ مریم تل ملا کر رہ گئی۔ دل تو چاہ رہا ہے میرا کہ… وہ غصے سے کچھ بولتے بولتے رکی۔ فارس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری بلائیں اتار لوں؟ وہ اسے زج کرتے ہوئے بولا۔ مریم نے دل جلانے والی مسکراہٹ اسے پاس کی تھی۔ نہیں، بلکہ اپنی سر کی بلائیں بھی تمہارے سر میں ڈال دوں۔ مریم نے بے ساختہ اس کی توثیق کی تھی۔ فارس ناک منہ چڑھا کر رہ گیا۔ اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو یم؟ زندگی رہی تو کبھی یہ موقع بھی آئے گا خیر سے۔ وہ مزے سے بولتے قہقہہ لگا اٹھا۔ مریم اس کی حاضر جوابی پر جل بھن کر رہ گئی۔ اتنی دیر میں نائمہ نے ارتضا اور اناب کو فریش ہونے کی تلقین کی تو ارتضا تو سنجیدگی سے اٹھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اناب نے تعجب سے اس کا بے رخی والا انداز دیکھا تھا۔ ان کے درمیان تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے الجھی سی اس کے تعاقب میں کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا؟ تم نیچے سے ایسے کیوں اوپر آئے؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی وہ اپنی جیکٹ اتارتے ہینگ کر رہا تھا، تبھی اس نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ کیسے؟ وہ اے سی چلاتے ایک لفظی جواب دے کر وارڈروب میں سر دے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی حرکت پر اناب نے اشتعال بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے ارتضا؟ ایسے برتاؤ کر رہے ہو؟ ابھی تو بالکل ٹھیک تھے۔ تم جانتے ہو کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم مجھ سے ناراض ہوتے ہو، پھر بھی کیوں کرتے ہو ایسا؟ وہ اس کا بازو تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ ارتضا نے نرمی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ جس دن تمہیں میری پسند اور ناپسند کی فکر ہونے لگے نا، اس دن میں بھی اس چیز کا خیال کر لوں گا۔ وہ سپاٹ لب و لہجے میں بولتے اپنا آرام دہ لباس نکالنے لگا۔ اناب کا منہ اس کی بات پر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھ سے پہیلیوں میں بات مت کیا کرو، صاف صاف کہو کیا بات ہے؟ وہ تڑک کر بولی۔ اس کی منمانیاں تو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ نیچے ماما سے کیا بول رہی تھی تم؟ بہت مہان ہو کہ اپنی جیت کا کریڈٹ کسے بھی دے دو، بہت عظیم ہستی ہو۔ تمہارے گزرے 4 سالوں کی محنت کا کیا جو تم نے راتوں کو جاگ جاگ کر کی ہے؟ ان زخموں کا کیا جو اس محنت میں تمہارے وجود پر آئے ہیں؟ ان لوگوں کا کیا جو اس جنون میں تم نے کھو دیے ہیں؟ ہر چیز میں صرف میں ہی کیوں اول پہ ہوں اناب؟ کیا تمہاری محنت تمہیں نہیں دکھتی؟ وہ درشت لہجے میں بولا۔ گزرے عرصے میں وہ اس کی ایک ہی قسم کی تکرار سن کر عاجز آ چکا تھا، مگر اناب باز نہیں آ رہی تھی۔ پلیز ارتضا، گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا غلط کہتی ہوں میں؟ میری ماما کے جانے کے بعد کیا ہوا تھا میرے پاس یاد ہے نا تمہیں؟ اس رشتے والی عورت کی بدولت اس محلے سے بھی دھکے کھا کر نکالی گئی تھی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان سب کے مطابق میرا کردار گندا تھا، میں نے غلط کاموں میں ملوث ہو کر اپنی ماں کو مار دیا۔ اس کے بعد کون تھا میرا؟ سائرہ آپ بھی باہر کے ملک تھیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ کس نے سہارا دیا تھا مجھے؟ تم نے ہی دیا تھا۔ کس نے اپنایا تھا مجھے؟ تمہارے گھر والوں نے نا۔ پھر میں کیوں نہ تمہارا احسان مانوں ارتضا؟ اتنے مراحل آئے ہیں میری زندگی میں اور ہر مرحلے میں نے سب سے اوپر تمہیں ہی پایا ہے۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ ارتضا کے تنے ہوئے عضلات اس کی بات پر سرے سے ڈھیلے پڑے۔ کیوں سوچتی ہو ان تلخ باتوں کو، اور بار بار، جن کا زندگی میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے؟ مت سوچا کرو، میں تو پہلے ہی تمہارا تھا، یہ بات ہم جانتے ہیں، یا ہمارا اللہ کہ ہمارا رشتہ کس قدر پاکیزہ ہے۔ لوگوں کا کام تو ہوتا ہی باتیں بنانا ہے میری جان، یہ لوگ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اپنی جیت کا جشن مناؤ جس کے لیے تم نے کس قدر محنت کی تھی، اس کا صلہ تمہارے سامنے ہے۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے محبت سے گویا ہوا۔ اناب نے اس کے لمس کو اندر تک اترتے محسوس کیا تھا۔ اس جیت کے پیچھے بھی تو تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ملا ہے تمہاری بدولت ہی تو ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ارتضا نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا جو ابھی بھی اس بات پہ قائم تھی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ پھر سے وہی بات اناب؟ وہ کشمگی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اناب نے ہاتھوں کی پشت پر اپنی آنکھوں کو مسلا تھا اور بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا جو برش کی مدد سے اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ آئینے کی جانب تھی۔ کیا میں نہیں جانتی ارتضا کہ آج میں تمہارے جان بوجھ کر ہارنے کی وجہ سے جیتی ہوں؟ کیا میں نہیں جانتی کہ وننگ لائن پر پہنچنے سے پہلے تم اپنی بائک کی رفتار کم کر چکے تھے تاکہ میں جیت جاؤں؟ کیا میں نہیں جانتی کہ تم نے اس ہار کو جان بوجھ کر اپنے نام لکھوایا ہے؟ اس کی بات پر ارتضا کے بالوں میں حرکت کرتا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس نے آئینے سے دکھائی دیتے اس کے عکس کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات یکلخت بدلے تھے۔ واٹ؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ فضول کی سوچوں کو اس قدر تم نے حاوی کر لیا ہے خود پر کہ کچھ بھی بولتی ہو؟ جاؤ جلدی سے فریش ہو جاؤ، نیچے ہائزم آ گیا ہوگا۔ وہ اس کا گال دھپدھپاتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ اناب نے بغور اس کی جانب دیکھا جو کس قدر سکون سے بات کو سرے سے ہی بدل چکا تھا۔ وہ اذیت سے مسکراتے فریش ہونے چل دی۔ ارتضا نے بوجھل دل سمیت اس کی پشت کو تکا تھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ سچ شکر تھا کہ اس بات کو بے وجہ طوالت نہیں بخشی تھی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ تولیے سے چہرے کو تھپتھپاتے جوں ہی باہر نکلی، اس کی نگاہ صوفے پر موبائل لے کر بیٹھے ارتضا کی جانب اٹھی تھی۔ تم گئے نہیں اب تک نیچے؟ وہ بالوں کو کیچر میں مقید کرتے ہوئے ناسمجھی سے بولی۔
तुम्हें तन्हा छोड़ तो कभी ना जाऊं भाई। 5 मिनट बाद पता चले कि मेरी बीवी डिप्रेशन की बदौलत ना जाने क्या कर बैठे। वो तंजिया निगाहों से उसकी जानिब देखते हुए बोला तो वो खज्जल सी हो गई। मान कुछ सोचते ही वो तेज कदमों से उसकी जानिब बढ़ी तो इर्तिजा ने हैरत से उसको अपनी जानिब आते देखा। उसके नजदीक पहुंचते ही वो झुकी और उसकी गर्दन में बाजू हमाइल करते उसकी चेन का हुक खोला था। इर्तिजा उसकी उंगलियों की हरकत अपनी गर्दन में महसूस करते होले से हंस दिया। तुम जानते हो, जहर लगती हैं मुझे ऐसी लोफरों वाली हरकतें गुंडों की तरह हाथों में बैंड्स, गर्दन में चेन। मतलब शामत आ गई बेचारी चेन की। वो उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए मजे से बोला। अनाब ने किस्मत साथे उसकी गिरफ्त से आजाद होना चाहा, मगर वो उसे खुद के मजीद नजदीक करते उसे खुद पर गिरा चुका था। अनाब का चेहरा लहू छलकाने लगा। बेहुदा इंसान, तुम्हें तो मौका चाहिए ऐसी हरकतें करने का। वो उसके शाने पर मुक्का जड़ते हुए बोली थी। कैसी हरकतें अनाब? वो वैसे तुम्हारी अदाएं ही इस कदर जानलेवा हैं, अच्छे से अच्छा इंसान हवास खो दे। वो उसके चेहरे पर झूलती आवारा लटों को कान के पीछे अड़सते उसके गाल पर अपना लम्स छोड़ते पीछे हटा तो उसका पूर पूर सुनसुना उठा। उसने दिल ही दिल में 100 बार खुद को कोसा, भला क्या जरूरत थी उसके नजदीक आने की। यूं बेशरम बनकर नदीदों की तरह ताड़ते हो पहले और फिर बाद में। वो जल्दबाजी में बोलते बोलते रुकी और जुबान दांतों तले दबा गई। नहीं मतलब क्या? अब क्या बीवी को ताड़ते हुए भी इंसान सोचे? वो उसकी नाक से नास मस करते हुए बोला। बिल्कुल जुर्रत भी मत करना वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ते जताने वाले लहजे में बोली। जान तो तुम अभी भी मेरी निकाल रही हो अपनी इन जानलेवा अदाओं से। उसका इशारा अनाब की बेसाख्ता हरकत की जानिब था। अनाब ने मुस्कुराहट दबाते उसके गाल को छुआ तो इर्तिजा की आंखें उसकी हरकत पर फटी की फटी रह गईं। अब तो तुम्हें बेहोश हो ही जाना चाहिए। वो मजे से हंसते इससे पहले कि अपनी जगह से उठती। इर्तिजा ने अकब से ही उसे अपने हिसार में लेते उसके शाने से थोड़ी टिकाई थी। वैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ अनाब। उसकी आवाज़ सरगोशी से कम नहीं थी। क्या सोच रहे थे तुम? वैसे तुमसे किसी अच्छे काम की तवक्का नहीं है, फिर भी बता दो। वो उसकी बात पर हल्के फुल्के लहजे में बोली और उसके सीने से अपनी पुष्टि टिकाई थी कि अब मुझे भी मेरी बेटी चाहिए। उसकी बरजस्ता ख्वाहिश पर अनाब के वजूद का सारा खून चेहरे पर सिमट आया। उसने सरस से उसके हिसार से खुद को आज़ाद करवाया था। ये क्या बात हुई यार? 3 सालों से तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करते मैं खामोश था ना। अब तुम्हें भी मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। और ये मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि हुक्म है, और मेरा हुक्म मानना तुम्हारे पे फर्ज। वो जताने वाले लहजे में बोला। अनाब ने दांत पीसते उसकी जानिब देखा, जो ऐसे बोल रहा था जैसे बच्चे दरख्तों पर उगते हैं। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं इर्तिजा। शायद तुम्हारी खुशी सर पर चढ़ गई है। उठो नीचे चलें, सब मौजूद है नीचे, ना जाने क्या सोच रहे होंगे। उसने सर झटकते हुए दुपट्टा कंधे पर डाला और उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर की जानिब धकेला। क्या सोच रहे होंगे? सबको मालूम ही होता है कि हम दोनों एक शादीशुदा जोड़ी हैं। शादीशुदा जोड़ी कमरे में। वो कंधे झटकते बेनियाजी से बोलते इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल करता, अनाब ने उसके पैरों पर अपना पैर मारा था। कुछ शर्म कर लो थोड़ी सी प्लीज। वो उसके सामने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए बोली और उसे दूर झटकती तनफन करती बाहर की जानिब बढ़ गई। इर्तिजा ने ताज्जुब से उसकी पुश्त को तका। 3.5 साल हो गए हैं शादी को, मगर बर्ताव ऐसा कर रही है जैसे 3.5 दिन हुए हों। उसने नासमझी से बड़बड़ाते उसकी तकरीर में कदम नीचे की जानिब बढ़ाए थे। अरे हाइजिम बाबा। उसने नीचे लाउंज में पहुंचते साथ ही हादी की गोद से उसे लेते हुए हवा में उछाला तो जवाब में वो खिलखिलाकर हंस दिया। अनाब ने उसकी हंसी पर कुर्बान होते चटाचट उसके गाल चूम डाले थे। तुम्हें भी अब सोचना चाहिए अनाब बीबी। क्या ये सब करके तुम ये साबित करना चाह रही हो कि तुम एक लड़की हो और मैं औरत? बरीजा ने दांत खिचखिचाते उसके कान के नजदीक झुकते सरगोशी की तो वो मुस्कुराहट दबाकर रह गई। मैं भी उससे ये फरियाद कर करके थक गया हूँ। जालिम सुनती ही नहीं, क्या किया जाए? अपने हुक्म से आने वाली आवाज पर बरीजा के साथ साथ अनाब ने भी उछलकर पुश्त पर देखा, जहाँ इर्तिजा दोनों हाथ पुश्त पर बांधे उसकी जानिब देख रहे थे। बरीजा का चेहरा खिफत से सुर्ख पड़ गया। इर्तिजा अब मुस्कुराकर बाएं आंख दबाते हाइजम को उसकी गोद से लेते खाने के मेज की जानिब बढ़ गया। उसके जाते ही बरीजा ने अनाब के बाजू पर चुटकी भरी थी। उसे सोच सोचकर अजीब लग रहा था कि वो उसकी बात सुन चुका है। अनाब उसकी हरकत पर बिलबिलाकर रह गई। मैंने तो उसे भेजने से कबल ही आप सबको टाला था, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे और वो मेरी ही औलाद है। इंतहाई जिद्दी है। वो जब भी किसी एक चीज़ को ठान लेती है तो कभी नहीं सुनती। मगर आप सब कुछ सुने तो फिर ना। हमेशा की तरह आज भी वो सब लाउंज में सोफों पर विराजमान एक दूसरे से बातों में मशगूल थे। बातों का मरकज सिर्फ प्रीसा की जात थी, जो गुजरे सालों में जर्मनी जाकर एक बार भी नहीं लौटी थी। वो सब असल में उसकी सूरत देखने को तरस गए थे, मगर उस लड़की को ना खुद पर तरस आता था और ना ही अपने से मुंसलिक रिश्तों पर। क्या हो गया है आफिया? तुम्हें तो इतना अरसा इंतजार क्या हो गया है आफिया? तुम्हें इतना अरसा इंतजार किया है तो कुछ वक्त और सही। वैसे बिजीमल की सालगिरह पर तो वो आने ही वाली है ना। वो संजीदगी से उन्हें समझाने वाले अंदाज में बोले तो आफिया ने तंजिया निगाहों से अफीफा की जानिब देखा तो बैक वक्त वो दोनों खज्जल सी हो गईं। सद्दाम और आदिल में से कोई भी उनके बयान से वाकिफ नहीं थे। क्या हुआ मामा? अब अफीफा को ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या कोई बात हुई है? अफीफा तुम बताओ। सद्दाम ने अपनी गोद में मचलती जेमल को उतारते अपना रुख अफीफा की जानिब किया तो वो आदिल की गोद में चढ़कर बैठ गई। अफीफा ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। जानती थी कि अब जो बात होगी उससे सद्दाम लाजमन भड़क जाएगा।
پہلے آپ وعدہ کریں غصہ نہیں کریں گے بلکہ تحمل سے سنیں گے صدام، وہ ملتجیانہ لب و لہجے میں بولی۔ اس گزرے عرصے میں پریسا کے نہ آنے کی خبر ہمیشہ وہ سب کی سماعتوں میں اتارتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت بار صدام اس پر اپنا ہی غصہ نکال دیتا تھا۔ صدام نے گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی جانب توجہ مبذول کر لی۔ اس نے ابھی بھی پکا نہیں کیا صدام، ہمیشہ کی طرح ٹال دیا ہے اس نے، نہ جانے اب کیا سوچ رہی ہے۔ اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے صدام، بابا نے بھی اس کے بھلے کے لیے اسے جرمنی بھیجا۔ اس وقت ہم سب کہیں نہ کہیں اس فیصلے سے رضامند ہو گئے تھے، مگر جو حرکت پریسا نے کی ہے وہاں جانے کے بعد، اس میں سراسر پریسا کی ہی غلطی ہے۔ ہم اس کی بدولت کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس نے سنجیدگی سے اسے باور کرانا ضروری سمجھا۔ صدام نے اس کی بات پر پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بابا، اس کا صرف ایک ہی حل نکلتا ہے کہ اب ہمیں بھی وہاں جا کر زبردستی اسے یہاں لانا پڑے گا، کیونکہ وہ یہاں آ کر صاف بات ہے آپ کے عطاف کا نشانہ نہیں بننا چاہتی۔ وہ جو وعدہ لے کر آپ نے اسے وہاں جانے کی اجازت دی تھی، وہ اس وعدے کو نبھانا نہیں چاہتی، تبھی دور بھاگ رہی ہے۔ صدام کا لہجہ پتھریلا تھا، عادل کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ مجھے اس سے اس قسم کی توقع بالکل نہیں تھی، میں نے اتنے مان سے یہ سب کیا تھا اور اس نے بھی تو حامی بھری تھی، مگر خیر، اب میں بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اپنی اولاد کا بھلا برا میں خوب جانتا ہوں اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں یہ بھی۔ اب تم اسے جیسے ہی لینے جاؤ گے، اس کے واپس لوٹتے ہی پریسا کی شادی کے انتظامات شروع کرو۔ میں نے پہلی فرصت میں اس کی شادی عاشر سے طے کرنی ہے۔ اس کے حتمی لہجے پر سب نے جھٹکے سے رخ موڑتے بے یقینی کی کیفیت میں ان کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر نرمی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ عفیفہ نے اپنی شادی کے اس تمام عرصے میں پہلی بار انہیں انتہائی غصے میں دیکھا تھا، اور اس غصے کی وجہ بھی اس کی ذات تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بابا، عاشر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ایک بار پری سے تو بات کریں گے نا شادی سے قبل؟ میں جانتا ہوں عاشر بہت اچھا لڑکا ہے، اتنے عرصے سے ہمارے آفس سے لنکڈ ہے، ہم اس کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں، مگر پری سے پوچھے بغیر کچھ طے کرنا I don't think so کہ یہ درست فیصلہ ہے۔ صدام سنجیدگی سے بولتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عادل نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ میں نے پری سے کیا وعدہ لیا تھا کہ اس کے واپس لوٹتے ہی جس سے میں کہوں گا وہ اسی سے شادی کرے گی۔ اگر میں اسے رائے لیتا رہا تو پھر تو وہ ایک ایک کر کے سب کو رد کرتی جائے گی، اس لیے جو بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے، اور یہ بات اسے ابھی کوئی نہ بتائے۔ وہ تند لب و لہجے میں بولتے لمبے لمبے ڈھک بھرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ عافیہ نے نم نگاہوں سے اس کی پشت کو تکتے صدام کی جانب دیکھا، جس نے سرت سے انہیں اپنے حصار میں لیتے ان کی پیشانی چومی۔ نہ جانے میری پری کے نصیب میں کیا لکھا ہے، وہ جو اتنا عرصہ وہاں خوش ہے تو پھر اسے وہاں آ کر کیوں دوبارہ ان غموں سے روشناس کرانا چاہتے ہیں تمہارے بابا؟ کیا انہیں اپنی بیٹی کی خوشی عزیز نہیں ہے؟ وہ روتے روتے بولی۔ عفیفہ نے زیمل کو گود میں بھرتے اس کے بال سنوارے اور پرسوچ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے ماما، اگر آپ ماں بن کر اس کی خوشیاں چاہتی ہیں تو وہ بھی باپ ہے اس کا۔ باپ اپنی اولاد کی ایک چھوٹی سی تکلیف پہ بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ 5 سال پہلے اس کی خوشی کی بدولت ہی بابا نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور آج اگر وہ وہاں خوش ہے تو اس میں بھی سب سے بڑا ہاتھ بابا کا ہی ہے۔ وہ انہیں سمجھانے والے انداز میں بولا تو عافیہ نے سرت سے اپنے آنسو پہنچے۔ دل بے تحاشا گھبرا رہا تھا آنے والے لمحات کا سوچتے۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ صدام عفیفہ کو مخاطب کرتا باہر سے آتے ملازم کو دیکھ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، جو اس کی سمت ایک نیلے رنگ کی فائل بڑھا رہا تھا۔ صدام نے سوالیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائیں۔ صدام بھائی، وہ یہ عاشر بھائی دے کر گئے ہیں، وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ اس نے اس کی بات پر حیرت سے استفسار کیا تو وہ شانے اچکا گیا۔ اندر آئے تھے، مگر پھر باہر جا کر گاڑی میں بیٹھے اور یہ فائل مجھے تھما دی۔ بہت اجرت میں دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی بات پر صدام اور عفیفہ دونوں کے چہروں پر بیک وقت تاریک سا سایہ لہرایا۔ وہ ملازم تو باہر چلا گیا، اس کے برعکس ان دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے کی جانب اٹھی تھیں۔ مطلب وہ ہماری باتیں سن چکا ہے؟ صدام نے تفکر سے پیشانی مسلتے اس کی جانب دیکھا تو وہ خاموشی سے چہرہ جھکا گئی۔ صدام نے غصے سے قدم کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ ماما، بابا کو کیا ہوا؟ زیمل کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی اور ہولے سے مسکراتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ آپ بابا سے ہی پوچھو نا، وہ اس کی ناک دبا کر پیشانی چومتے ہوئے بولی اور اسے گود میں بھرتے قدم کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ تقریباً بھاگنے والے انداز میں اس کی جانب بڑھی جو فائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا۔ اسے نیچے اتارتے وہ وارڈروب کی جانب بڑھ گئی اور سٹول کو آگے کھینچتے وہ اس پر چڑھی تھی۔ ارادہ سب سے اوپر والے خانے سے بیگ اتارنے کا تھا، مگر اس کا دروازہ کھولتے ساتھ ہی ایک منظر پر نگاہ جاتے ہی وہیں ساکت ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں صدام کی جانب دیکھا۔ صدام، یہ آپ نے چادر پہنچائی کیوں نہیں شہرام بھائی تک؟ اس کی زبان حیرت کی زیادتی سے گنگ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ صدام کے کہے کے مطابق وہ تو چادر شہرام کو پہنچا چکا تھا۔ صدام ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی عفیفہ یہ قدم اٹھانے کی، میں چاہ کر بھی یہ کام نہیں کر سکا، مگر تم پری سے اس چیز کا ذکر بالکل مت کرنا، نہ ہی اس چادر کو دوبارہ اس کی نگاہوں میں آنے دینا، یہ جہاں ٹکی ہوئی ہے وہیں رہنے دو۔ وہ سپاٹ لب و لہجے میں بولتے نظریں چرا گیا تھا۔ بابا، کیا ہوا آپ کو؟ وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ اس کے نرم گرم لمس پر صدام نے تمام باتوں کو سرے سے جھکتے ہوئے محبت سے اسے باہوں میں بھرا اور اسے لیتے بیڈ پر براجمان ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس آپ کی جو ایک عدد پھپھو ہے نا، انہوں نے دماغ گرم کر دیا ہے، وہ اس کے ننھے منھے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا۔
زیمل نے ناسمجھی سے عفیفہ کی جانب دیکھا۔ بابا سے پوچھو کہ آپ کا دماغ گرم کب نہیں ہوتا زیمل، وہ شکوہ کناہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ صدام نے معنی خیزی سے اس کی جانب دیکھا۔ زیمل، ماما سے کہیں کہ جب بابا کا دماغ ہر وقت گرم رہتا ہے تو پھر آپ نے اب تک ان کا دماغ ٹھنڈا کرنا بھی نہیں سیکھا۔ اس کی بات پر عفیفہ تنک کر برش ٹیبل پر رکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی بیٹی کس مرض کی دوا ہے، یہ کر دیتی ہے نا آپ کے غصے کو ٹھنڈا، پھر مجھ سے کیا چاہیے آپ کو، وہ ناراض لہجے میں بولی تھی۔ محبت چاہیے تم سے، وہ اس کے کان کے نزدیک جھکتے اس کی سماعتوں میں رس گھولتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ سب کچھ تو اپنا آپ پہ وار چکی ہوں، مزید کتنی محبت دوں؟ عفیفہ نے نرمی سے بولتے محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موزن تھا۔ بس تھوڑی سی مزید، زیادہ نہیں، بس ذرا سی طلب ہے۔ اس کی بات پر عفیفہ نے الجھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں سنجیدگی رقم تھی۔ اور یہ طلب کیسے مٹے گی صدام صاحب؟ وہ سوالیہ نگاہیں اس کی جانب مرکوز کیے بولی تو صدام نے گہرا سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ ایک چھوٹے سے منع کے آنے کے بعد وہ شرارت سے بولتے زبردست قسم کا قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ عفیفہ کا منہ اس کی بات پر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شرم کیا کریں کچھ، آپ کی منی ہم دونوں کو دیکھ رہی ہے، وہ اس کے شانے پر مکہ مارتے شرم دلانے کی خاطر بولی۔ چہرے پر گلال بکھر گیا تھا۔ اوفو، آپ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ اپنے ماتھے پر چھوٹا سا ہاتھ مارتے ہوئے چھوٹی سی ناک پر غصہ سجاتے ہوئے بولی۔ عفیفہ اور صدام نے حیرت سے اس چھوٹی سی آفت کو تکا تھا۔ صدام کو تو وہ بالکل پریسا کی کاپی لگتی تھی، بولتی ہوئی، کھیلتی ہوئی، ہنستی ہوئی اور بالکل اپنی پھپھو کا عکس تھی۔ صدام نے سائڈ ٹیبل سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے سر سے پریسا کو کال ملائی تھی۔ تقریباً 2-3 بیل کے بعد دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری جانب سے دکھائی دیے جانے والے پریسا کے مسکراتے چہرے کو دیکھ صدام کو اپنی تمام تر تھکن اترتی محسوس ہوئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ وہ سکرین پر نمودار ہوتے زیمل کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ پہلے میرا بچہ ذرا مجھے تو حال احوال سنائے، کیا خیال ہے محترمہ آپ کے؟ صدام نے مصنوعی غصیلے لہجے میں اسے مخاطب کیا تو وہ جو لینا کو کچھ ہدایات کرنے میں مصروف تھی بھاری مردانہ آواز پر اس نے لینا کو وہاں سے جانے کا بولا۔ اب اس کی تمام تر توجہ لیپ ٹاپ کی جانب تھی۔ میں تو بالکل فٹ بھائی، ایوری تھنگ از آل رائٹ، بس کام کا برڈن آج کل کچھ زیادہ ہی ہے تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس نے نرمی سے بولتے کافی کا کپ لبوں سے لگایا۔ واپسی کب ہے آپ کی؟ اس نے تمام تر باتوں کو نظر انداز کرتے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ میں نے بتایا ہے ماما عفیفہ کو، انہوں نے ذکر نہیں کیا، اس نے سرسری سے لہجے میں جواب دیا۔ پھوپھو، آپ بابا کا دماغ گرم کرتی ہو؟ زیمل جو بہت غور سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی اچانک پوچھ بیٹھی۔ میں کرتی نہیں ہوں میرا بچہ، خود بخود ہو جاتا ہے، اب اس میں میرا کیا قصور بھلا؟ وہ معصومیت کے تمام تر ریکارڈ توڑتے ہوئے مزے سے بولی۔ ویسے بھائی دیکھ لیں، بچوں کے سامنے ایسی باتیں مت کیا کریں، پول کھول دیتے ہیں بچے، پریسا اسے وارن کر رہی تھی۔ صدام نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ یہ بالکل تمہارے جیسی ہے پری، اس سے روبرو کب ملو گی؟ وہ اذیت سے بولا۔ بہت جلد بھائی، بہت جلد، کیونکہ یہ پریسا ابھی صرف خود سے متعارف ہوئی، دنیا سے متعارف کروانا اسے ابھی باقی ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ صدام نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اور ایک بات مزید بھائی، آپ زیمل کو میرے جیسا مت کہا کریں اور دعا کیا کریں اس کے نصیب تو میرے جیسے بالکل نہ ہوں۔ میں نصیبوں کی ہاری ہوئی لڑکی تھی، اپنا رونا برداشت کر گئی مگر اس کا رونا برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس کا انداز بے شک مسکراتا ہوا تھا مگر اس کے لہجے میں چھپی ٹوٹے کانچ کی کھڑکیاں ہم سب کے وجود کو لہولہان کر گئیں۔ لگتا ہے کوئی ناراض ہے مجھ سے، تبھی تو میری جانب نگاہیں نہیں کر رہا، اس نے کیمرے سے دکھائی دیتی عفیفہ کی پشت کو دیکھتے جملہ کسا مگر اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھوپھو، بابا ماما سے کہہ رہے تھے کہ انہیں مننا چاہیے، وہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں یہ۔ اس کی بات پر کافی پینے میں مصروف پریسا کو زوردار قسم کا پھندا لگا۔ اس کے برعکس عفیفہ اور صدام کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ ان دونوں نے خون آشام نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور ایک نظر پریسا پر ڈالی جو مسلسل مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ بھائی کم از کم بچوں کے سامنے ایسی گفتگو سے پرہیز کیا کریں، ابھی میرے سامنے بات کی ہے اس نے، تبھی بچت ہو گئی آپ کی، اگر یہاں ماما بابا ہوتے تو؟ وہ شرارت سے بولتے بولتے رکی تو صدام نے خفت سے سرخ پڑتے سرے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور تم نگاہوں سے زیمل کی جانب دیکھا۔ بند کیوں کیا فون؟ بات کرنی تھی پھپھو سے، ابھی میں نے کسی بھی نہیں بھیجی، زیمل روتے ہوئے بولی۔ صدام نے اس کے سامنے باقاعدہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ دیکھ میری ماں، مجھے معاف کر دے، ابھی فون نہ بند کرتے تو نہ جانے کتنے پول کھول دیتی، وہ عفیفہ کی جانب دیکھتے تڑک کر بولا۔ اسے زیمل کے سامنے اس قسم چہرے پر شرمندگی کا عنصر ابھی بھی نمایاں تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے زیمل کے سامنے اس قسم کی بکواس کرنے کی؟ میں آپ کی ماں نہیں ہوں، آپ کی منی ہوں، وہ چھوٹی سی پیشانی پر تیوری چڑھائے غصے سے بولی۔ عفیفہ نے سرے سے اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ اس کے برعکس صدام کا حال تو گویا ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو سنوارتے بیٹھ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کس کو جنم دیا ہے تم نے؟ وہ اب عفیفہ کے سر ہوتے اسے پوچھ رہا تھا، لہجہ باقاعدہ روحانسا تھا۔ آپ کی اولاد کو، وہ شانے اچکا کر مزے سے بولتی زیمل کی جانب متوجہ ہو گئی اور اس کی حاضر جوابی پر چٹا چٹ اس کے گالوں کو چوما تھا۔
जन्म तुमने मेरी ही औलाद को दिया है, मगर गलती से ये तुम पर चली गई है हाजिर जवाबी के मामले में। वो उसकी बात याद करते पेचोताप खाकर रह गया। दूसरी जानिब प्रीसा ने फोन बंद होते ही मुस्कुराकर इंटरकॉम उठाते लीना को दोबारा अपने ऑफिस में तलब किया। चंद सातों बाद ही वो उसके सामने थी। डिड यू टॉक टू मिस्टर डेविड और नॉट? मिस्टर डेविड से बात हुई है आपकी या नहीं? वो अंग्रेजी लबो लहजे में बोली। जवाबन उसने नफी में सर हिला दिया। प्रीसा ने अपनी पेशानी मसलते उसकी जानिब देखा। कीप कॉलिंग देम अंटिल यू कैन कॉन्टेक्ट देम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपका उनसे रब्ता मुमकिन नहीं हो जाता उन्हें फ़ोन करती रहें, ये बहुत ज़रूरी है। वो मताने से गोया हुई। आज उसे एक शोरूम में मदऊ किया गया था जहाँ जाना उसके लिए बेहद ज़रूरी था, और आज उनका लिबास इन्हीं के ज़रिए से आने वाला था। श्योर मैम, वो धीमे से मुस्कुरा कर बोली और सर को खम किया था। प्रीसा ने नरम निगाहों से उसकी जानिब देखा। ओके यू मे गो नाउ डार्लिंग, वो खुश रंग लहजे में बोली तो रीना अपनी मखसूस चलते वहाँ से निकलती चली गई। इससे पहले कि प्रीसा दोबारा लैपटॉप खोलती, मोबाइल पर होने वाली बेल की आवाज़ पर उसने चौंक कर मोबाइल उठाया तो व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज था। उसने जूं ही ग्रुप खोला, सामने ही ट्रॉफी के साथ अनाब की तस्वीर थी। वो उसकी कामयाबी पर खुशदिली से हंस दी और दिल को छू जाने वाला मैसेज लिखते सेंड किया था, और हैरत की बात कि अगले ही लम्हे वो ब्लूटूथ भी हो गया था। चंद सातों बाद ही दूसरी जानिब से वीडियो कॉल आई थी जिसे उसने अंगूठे की मदद से काट दिया। पिछले 5 सालों से यही तो होता आ रहा था। प्रीसा ने उन सबको अपनी सूरत देखने के लिए भी तरसा दिया था। अगले ही लम्हे वॉइस कॉल आते ही प्रीसा ने बगैर किसी तरद्दुद के फोन कान से लगाया। इट्स टोटली रॉन्ग किडो, 5 साल से तुम्हारी सूरत देखने को तरस गए हैं। ना कोई पिक्चर, ना कोई वीडियो, व्हाट्स प्रॉब्लम विद यू? पारिस की झंझलाती आवाज़ पर उसने मेज़ पर आड़ी आड़ी तिरछे लकीरें खींची थीं। कम अज कम आज तो उठा लेती, आज अनाब के लिए बहुत बड़ा दिन था। इर्तिजा की बात पर उसने गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया। वो सब मजीद भी कुछ बोलते अपनी नाराजगी का वाज़ेह इजहार कर रहे थे, और प्रीसा खामोशी से उनकी बातों को सुनने में मसरूफ। परीसा आफंदी लौट रही है इस महीने की 25 को, उससे मिल लेना, देख लेना, और हो सके तो पहचान भी लेना, क्योंकि अब परीसा पुरानी नहीं बल्कि नए अंदाज में एंट्री लेगी जो शायद तुम सबके वहमो गुमान में भी ना हो। उसकी अचानक बात पर दूसरी जानिब मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छा गया। तुम सच बोल रही हो परी? मरियम की बेयकीन आवाज़ पर उसने कंधे उचकाते कहने पर इत्तफा किया था। तुम सबके लिए अपने अपने डिज़ाइन किए ड्रेसेस भेजूंगी, हो सके तो उसे पहनकर मुझे वेलकम करना। उसने मुस्कुराते लहजे में बोलते सरस से कॉल काट दी और इन सबकी प्रोफाइल पिक्चर खोलते उस पर अपना हाथ फेरा था। आई मिस यू ऑल सो मच, वो धीमे से बड़बड़ाई और होले से हंस दी। अब बहुत जल्द उसे वापसी का सफ़र तय करना था। आते हुए दिल जितना साकित था, वापसी पर उसकी जगह ढेरों इत्मीनान ने ले ली थी। आज स्कूल में दिन कैसा गुजरा आपका? शहराम ने उसकी अलमारी से कपड़े निकालकर उसे थमाते संजीदगी से इस्तफसार किया। उसकी बात पे कई सानिया तो वो बगैर पलक झपकाए उसकी जानिब देखता रहा, मगर फिर खामोशी से निगाहों का जाविया बदल गया। बस ठीक गुजरा, उसका अंदाज लिए दिए वाला था। शहराम ने मशकूक निगाहों से उसकी जानिब देखा। बस ठीक क्या होता है? अच्छा बुरा, ये 2 अल्फाज होते हैं और इंसान को साफ लफ्जों में बात करनी चाहिए, ना कि घुमा फिरा कर। वो जताने वाले लहजे में बोला। गाजान ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और अपनी तमाम तर तवज्जो उसकी जानिब मबजूल कराई थी। फिर चाहे उससे किसी का दिल टूट जाए। उसकी इस कदर गहरी बात पर शहराम का उसके स्टडी टेबल को सेट करता हाथ वहीं थमा था। उसने ठटक कर गाजान की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर एक सवाल मंडरा रहा था। शायद वो उससे जवाब चाहता था। ये बातें आपको किसने सिखाई हैं? क्योंकि मेरे ख्याल में अभी आपकी उम्र इतनी नहीं कि किसी के दिल टूटने की फिक्र आपको होनी चाहिए। उसका लहजा करक था। गाजान ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। मान कुछ सोचते उसने जरा सी पलकें उठाई। हो सकता है कि मेरी ये आदत आप पे चली गई हो। वो संजीदगी से बोलते उसके हाथों से अपना लिबास लेते वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। शहराम ने बगौर उसकी पुश्त को तका, जिसकी उम्र अभी थी ही क्या। उसका दिल धक से रह गया। वो अपने मालिक की जरा सी भी परछाई उस पर नहीं पड़ने देना चाहता था, क्योंकि उसमें सरासर नुकसान सिर्फ उसकी जात का था। वो ठंडी आह भरकर रह गया। उसने उसकी गैर मौजूदगी में कमरे में हल्का हल्का हाथ मारते उसे तरतीब दी और एक तायराना निगाह पूरे कमरे में दौड़ाई थी। चंद सातों बाद ही वो नम बालों समेत वॉशरूम से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर गुजरी किसी बात का शाइबा तक नहीं था। चलें अब बाहर चलें डाइनिंग पे, शाइस्ता आप ही नाश्ता लगा देती हैं आपके लिए, मैं बस कुछ काम मुकम्मल करके आ रहा हूँ। वो तो हक्कुम भरे लहजे में बोला। गाजान का नाम सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त कर गया। उसे न जाने क्यों इस औरत से एक अजीब सी चिढ़ थी, यहाँ तक कि उसके हाथ के खानों से भी, मगर अभी वो शहराम को गुस्सा नहीं दिला सकता था। तभी छोटे छोटे कदम उठाते दरवाजे की जानिब बढ़ा और पाँव की उंगलियों के बल ऊंचा होते दरवाजा खोलकर बाहर की जानिब बढ़ गया। वो दूसरे बच्चों की निस्बत खामोश तबाह बच्चा था। किसी से ज्यादा बात करना उसे पसंद नहीं था। कोई चीज या इंसान उसे मुश्किल से ही अच्छा लगता था। अभी भी वो खामोशी से कुर्सी खिसकाकर उस पर चढ़कर बैठ गया। गुड आफ्टरनून गाजान बाबा। शाइस्ता ने मुस्कुराकर उसे वेलकम किया, मगर वो जवाब पे बिल्कुल खामोश रहा था। शाइस्ता अपनी बेइज्जती पर कुर्ती किचन की जानिब बढ़ गई। कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में गाजान का खाना था। उसने जो ही गाजान के आगे ट्रे रखी, उसने उसी तेजी से माथे पर शिकने से जाए वो ट्रे जमीन पर उलट दी थी। शाइस्ता उसकी हरकत पर खौफजदा रह गई। तभी फटी फटी निगाहों से जमीन पर औंधी गिरी ट्रे को देखा।
गाज़ान, बाबा ये क्या किया आपने? वो रो देने को थी। नहीं खाना मुझे ये, आपको पता है फिर भी आप मुझे यही देती हो। आप जानबूझकर ऐसा करती हो, गंदी हो आप। वो बदतमीजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। बाहर से आने वाली गैर मामूली शोर की आवाज़ों पर शहराम अपना काम तर्क करते बाहर की जानिब भागा था, मगर बाहर का मंजर देख उसकी पेशानी पर लातादाद शिकने नमूदार हुई। क्या हुआ शाइस्ता, ये सब क्या है? उसने बराह रास्त उसे मुखातिब किया। सर, मैंने बस मामा को खाना दिया था ऑमलेट, मगर उन्होंने ट्रे ही जमीन पर उलट दी कि उन्हें मेरे हाथ का कुछ नहीं खाना। वो शर्मिंदगी से चेहरा झुकाते बोली। शहराम ने सर्द निगाहों से गाज़ान की जानिब देखा और उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेते एक झटके से अपने मुकाबिल किया था। ये क्या हरकत है गाज़ान, आप दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हैं। वो गुस्सीले लहजे में बोला। मुझे नहीं खाना ये, एलर्जी है मुझे इससे, आपको पता है, मगर आप भी भूल जाते हैं। नहीं रहना मुझे आपके साथ, मुझे अपनी मामा के पास जाना है। कहाँ है वो? वो क्यों गाज़ान को छोड़कर चली गई? डैड बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ना चाहते हुए भी उसका लहजा भीग गया था। शहराम उसकी बात पर दमबख्त और साकित रह गया। रंगत फीकी पड़ गई, उसकी निगाहें बेइख्तियार शाइस्ता की जानिब उठी, क्योंकि उसमें सरासर उसी की कोताही थी। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी डैड, भूल गए थे। मैं अभी ये मैटर रिजॉल्व कर देता हूँ। वो अपनी पेशानी मसलते हुए परेशानी से गोया हुआ। गाज़ान ने एक झटके से उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई आज़ाद करवाई थी। नो, मुझे मेरी मामा चाहिए, मामा चाहिए, मामा चाहिए। वो जिद्दी बच्चों की तरह एक ही बात पर अड़ गया था। बताएं मेरी मामा कहाँ है? मेरे सब फ्रेंड्स की मामा है, बस मेरी ही नहीं है। वो उसका शाना हिलाते हुए गुस्से से बोला। शी इज़ डेड गाज़ान खान, शी इज़ डेड। वो अब इस दुनिया में नहीं है, और आइंदा मैं आपके मुंह से मामा लफ्ज़ भी नहीं सुनूं। गॉट इट? वो शहादत की उंगली उठाते तंबीही लबो लहजे में बोला तो उसकी चलती जुबान को सरस से ब्रेक लगे थे। आंखों में जल रही बोझ जैसे इस इंकशाफ पर बुझ सी गई थी। शाइस्ता, आपकी बेखबरी पे आज तो मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा, मगर आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो मैं इस लम्हे बगैर कोई वक्त ज़ाया किए आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अपने जहन में बिठा लें ये बात। अभी फ़िलहाल आप यहाँ से जाएं और बाकी के काम देखें। मैं खुद ही अपने बेटे को देख लूँगा। बिकॉज दादा एंड गाज़ान डोंट नीड अ गर्ल फॉर सर्वाइव। उसने पथरीले लहजे में उसे बावर कराया और गाज़ान को अपनी बाहों में भरते किचन की जानिब बढ़ गया। किचन में दाखिल होते उसने गाज़ान को स्लेब पर बिठाते अपनी तमाम तवज्जो उसकी सिमत मबजूल कराई थी। जी अब बोलें, क्या खाएंगे आप? वो मोहब्बत से उसके बालों को संवारते हुए बोला। वो चुटकी में चटकारा भरते हुए मज़े से बोला था, नूडल्स चिली वाले। शहराम ने उसकी बात पर सर को कम करते नूडल्स के लिए पानी चढ़ा दिया। गाज़ान जो बगौर अपने बाबा को देख रहा था, कुछ सोचकर खिसक कर उनके नज़दीक हुआ। बाबा, क्या कोई आपसे नाराज़ है? उसके अचानक बाल पर शहराम, जो साथ लैपटॉप पर कोई काम करने में मुहफ था, अपनी जगह पर साकित रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके दिल को कौन छुरी से काट रहा हो। उसने नासमझी से गाज़ान की जानिब देखा, जिसकी अक्सरे करती निगाहें उसके चेहरे पर जमी थीं। नहीं तो आपको ऐसा किसने कहा? उसने निगाहें चुराते हुए अपने लहजे को हत्तुल इम्कान सख्त बनाते हुए बोला। गाज़ान की निगाहें अभी भी उसके चेहरे पर ही थीं। अच्छा, उसका लहजा पुरसोच सा था। शहराम ने शुक्र अदा किया कि शायद वो टल गया है। मगर आप तो रात में कुछ बोल रहे थे नाराजगी को लेकर, तो मुझे लगा शायद कोई नाराज है। वो छोटे से शाने उचकाता नासमझी से बोला। शहराम का चेहरा लट्ठे की मानी सफेद पड़ गया। हलक में कांटे से चुभने लगे, आंखों में जैसे किसी ने मिर्चें सी भर दी थीं। क्या था वो बच्चा जो छोटी छोटी चीज को कैसे एग्जामिन करता था? वो कोई मामूली बच्चा तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। ऐसी उम्र में तो बच्चे ठीक तरह से खाना पीना और बोलना सीखते थे, और वो इतने बड़ों बड़ों वाली गहरी बातें ऐसे कर जाता था कि कभी कभार वो भी सोच में पड़ जाता था कि वाकई में ये उसी की औलाद है। खैर, आज आपको पता है, मैंने छुपकर अपनी मैम की बातें सुनी थी। वो चहक कर बोलते बात का रुख बदल गया। क्या बातें सुनी आपने उनकी? वो सरसरी से अंदाज में बोला, क्योंकि फिलहाल उसे हकीकत में इन सब बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, तो वो बोल रही थी कि जब आपसे कोई नाराज हो तो किसी दूसरी जुबान में मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, मोहब्बत जल्दी मान जाती है। उसकी बात पर शहराम ने झटके से रुख मोड़ते बेयकीनी के आलम में उसकी जानिब देखा। ये आपकी उम्र है इस किस्म की बातें करने और सुनने की? स्कूल ये करने जाते हैं आप? शहराम तुंद लहजे में बोला, मगर कहीं ना कहीं दिल में इस बात ने गिरा सी बांध ली थी। अपने दिल की इस हरकत पर वो खुद हैरान सा था। इट्स नॉट माइंड फॉल्ट डैड, इस बात का मैम को ख्याल रखना चाहिए था। मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, और बच्चे बातों को जल्दी पिक करते हैं। वो सुकून से सारा इल्ज़ाम मैम पर डालते खुद बरियो जिम्मा हो चुका था। शहराम ने तासुफ से उसकी जानिब देखा। इससे पहले कि उनकी बात मजीद तवारत बख्शती, बाहर से मुलाजिम ने आकर उन्हें परखा और नुफेल के आने की इतला दी थी। हमारे लाला, जिसने कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया, या तुम उनसे खिदमतें करवा रहे हो छोटे खान? परखा उसके नजदीक आते उसके कान खींचते हुए मसनूई गुस्से से बोली। शहराम ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब बाहें वाह की तो वो उसमें आ समाई। इसी दौरान नूरी भी खिलखिलाते हुए किचन में दाखिल हुई थी। हमारे मामू, वो चहक कर बोली तो शहराम ने नरमी से उसे बाहों में भरते उसकी पेशानी पर लब रखे थे। सबको ये बात बखूबी वाकिफ थी कि शहराम को बेटियां किस कदर पसंद है, तभी उसका नूरी के साथ बिल्कुल अलग सा हिसाब था। गाज़ान ने नागवारी से उस चिमटी चुड़ैल की जानिब देखकर सर झटक गया। उसकी हरकत को शहराम ने खास तौर पर महसूस किया था।
تم باہر چلو نوفیل کے پاس، میں ابھی آیا بس 2 منٹ میں۔ اس نے پرکھا کو باہر لاؤنج میں جا کر بیٹھنے کی تلقین کی تو وہ نوری کا ہاتھ تھامتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی شہرام ایک بار پھر اس کے سر ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے غازان خان، وہ ہماری مہمان ہیں اور آپ اتنی بری طرح انہیں گھور رہے ہیں۔ وہ کھردرے لہجے میں بولا۔ انہیں نہیں، بس اس نورے کو، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، ہمارے کرتی، چمٹی چڑیل لگتی ہے، وہ منہ بسور کر بولا۔ شہرام نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ تو پھر آپ کی پھوپھو بھی بولتی ہیں؟ پھوپھو تو کیوٹ لگتی ہیں مگر وہ نہیں، وہ ہماری طرح بھی بول سکتی ہے، ضروری نہیں وہ پھوپھو اور پھوپھا کی طرح ہی بولے۔ وہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے بولا۔ ہم سب اسی زبان میں بات کرتے ہیں، میں بھی پہلے ایسے ہی بولتا تھا مگر شہر جا کر میری زبان کسی حد تک بدل گئی، تبھی آج آپ اس زبان میں بات کرتے ہیں، ورنہ آپ بھی پٹھانوں کے مخصوص لب و لہجے میں بات کرتے۔ وہ کرختگی سے جتانے والے لہجے میں بولا تھا۔ ہمارے کو بھی ایسے بولنا آتا ہے بابا جان، میں چھوٹا پٹھان ہوں، شہرام خان کا بیٹا غازان خان، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ اس کی بات پر شہرام نے ستائشی انداز میں اس کی جانب دیکھا اور کھل کر ہنستے اس کی پیشانی چومی تھی۔ آج اسے اس میں بالکل چٹانوں کی طرح مضبوط پٹھانوں والی جھلک دکھی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے سلیب سے اتارا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ یہ آپ کی جو اولاد ہے نا، بس چام چٹ ہے، سب سے چمٹ جاتی ہے۔ پرکھا نوری کو نوفیل کی گول میں تھماتے چڑھ کر بولی۔ نوفیل کا کہا اس کی بات پہ بے ساختہ تھا۔ اسے چام چٹ نہیں پرکھا، اسے محبت کرنے والا کہتے ہیں۔ ہماری بیٹی سب سے محبت لینا بھی جانتی ہے اور دینا بھی، ایسی ہے ہماری نوری، جہاں بھی جائے گی بس نور ہی بکھیرے گی۔ وہ نوری کی پیشانی چومتے ہوئے بولا۔ پرکھا نے تند نگاہوں سے ان دونوں کے پیار محبت کا ملاحظہ کیا تھا۔ ہمارے کو بھی آپ یہی بولتے تھے، اب یہ فکرہ بیٹی کے پاس کیسے چلا گیا؟ وہ تنک کر بولی۔ تم نے ہماری زندگی میں اتنا نور بکھیر تو دیا ہے، یہ دیکھو اس بات کا سب سے بڑا ثبوت، یہ ہماری بیٹی ہے، ہماری زندگی ہے، جس کو دیکھے بغیر سانس لینا ہمارے لیے دوبر ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے بولا، ساتھ ہی پرکھا کی پیشانی بھی چومی تھی جو اس کی قمیض کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی۔ پرکھا نے ہنستے ہوئے آزودگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں اس کے آنے سے نور ہوا ہے، مگر وہ اسے یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہاں تو بالکل برعکس ہے، میں کسی اندھیری رات کی مانند تھی جس میں نور، اجالا، روشنی، سب کچھ نوفیل کی ذات نے بھرا تھا۔ وہ اس ذات کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ مگر غازان لالا تو ہمارے سے نفرت کرتے ہیں مورے، وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولی۔ وہ جتنا اس کے نزدیک ہونا چاہتی تھی وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتا تھا۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوتا تھا، وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھتی، جواب میں وہ اسے غصے سے گھور دیتا اور نوری کی رہی سے ہی ہمت وہیں جواب دے جاتی تھی۔ نفرت کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ منہ سے نہیں نکالتے، وہ بڑا ہے نا اور شروع سے اس کی عادت ایسی ہی ہے، وہ سب سے محبت کرتا ہے اور ہماری نوری سے بھی کرتا ہے۔ پرکھا اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولی۔ نوفیل نے سنجیدگی سے پرکھا کی جانب دیکھا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ نوری اس کی گود سے اترتے صحن کی جانب بھاگ گئی۔ ہمارے خیال میں غازان کا رویہ اکیلا ہونے کی بدولت ہے، کیونکہ باپ تو ہر وقت کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ ماں کی کمی ایک اولاد کو زندگی کے ہر لمحے میں محسوس ہوتی ہے، اور پھر جو تربیت ایک ماں کر سکتی ہے وہ ایک باپ نہیں کر سکتا۔ شہرام کو اب سنجیدگی سے اس بابت سوچنا چاہیے۔ وہ اپنے تجربے کے مطابق نتیجہ اخذ کرتے ہوئے بولا۔ آج اسی بدولت تو بات کرنے ہم دونوں یہاں آئے ہیں، اللہ کرے لالا مان جائیں، ورنہ غازان کی تربیت ٹھیک سے نہ ہوئی تو وہ بگڑتا چلا جائے گا۔ ایک بچے کو بچپن سے ہی ماں سنوار سکتی ہے۔ پرکھا سنجیدگی سے بولی۔